I request you all to rise for national. I would like to welcome you all to this today's awareness session on post-incorporation compliance requirements and easy exit. It's exit mode है, जिसपे we'll be covering easy exit schemes. This is a joint session arranged by NRC with SCCP. हमारे मेरे ख्याल में साल में तकरीबन 2 sessions हो जाते हैं with SCCP, and it provides a good opportunity to all of you participants to hear directly from the regulators and ask your questions, concerns जो भी हैं. There's a lot of work which is being currently done by SCCP on this as well. We have guest speakers हमारे पास हैं जी from ACCP. We have Shehbaz Sarwar sir, he's in charge here Company Station Office Lahore. We have Ms. Sidra Mansoor, she's additional registrar PRO Lahore, and we have Mohammad Hassan Zaidi sir, he's a additional joint registrar Company Registration Office Lahore. So welcome you all ji, and thank you for taking time out for today's session. We'll start the session with Shehbaz Sahab. He'll be giving his opening remarks. Shehbaz Sahab is in charge of Company Registration Office Lahore. He's a fellow member of the Institute of Chartered Accountants and a law graduate as well, and has over 20 years of experience in the field of corporate law, finance, and cost accounting and management. So, Shehbaz Sahab, please. Bismillahirrahmanirrahim. All distinguished guests and honorable members of the ICAP, Assalamu alaikum. It's a great pleasure for me to welcome all of you in this enlightening and brainstorming assembly, highlighting the importance of the corporatization and corporate statutory compliance by the registered companies. As you know, the SCCP, which is the regulator of the companies, has launched the Corporate Awareness Program with the objective to boost the healthy corporate growth and development of the economy in the country. And this seminar is a part of this awareness campaign with the ultimate object of enhancing corporate compliance. Ladies and gentlemen, the basic objective of this seminar is to facilitate the consultants, promoters, and the management of the companies in developing an understanding of their responsibility to comply with the post-incorporation statutory requirements. I am pleased to say that the Commission has a strategic priority to strengthen and maintain an effective regulatory environment in which the businesses can grow and succeed. Mindful of this fact, substantial pro-business reforms have been successfully implemented by the Commission, and these reforms include end-to-end digitization of the company incorporation process, centralized name reservation and company incorporation, creation of a dedicated business center at Islamabad, launch of digital portal for bank to address difficulties in account opening by the companies, then issuance of digital certified copies. You can obtain digital copies instead of applying the physical copies. Then issuance of digital certificate of acknowledgement of various forms, means the companies submit different form A29, form 3, return of allotment, etc. All the acknowledgements are we are issuing all the acknowledgements online through e-services. Issuance of digital certificate of mortgage charges. When the companies you apply for copies of registration of charges, mortgage charges, to secure the loan. Those now we are issuing all the certificates, including modification and satisfaction through our online portal. Then enabling of WhatsApp services to guide the consultants, applicants, and it is open 24/7. Then we are also created linkages with other government departments and banks. As a result of this, there is a tremendous increase in number of incorporated companies. The total number of companies registered with SCCP are around 182,000. And it's amazing that out of which 72,000 companies were registered during the last 3 years, which shows overall growth of 65% over the last 3 years.
Besides, the SECP has recently amended the Companies Act 2017 through the Companies Amendment Act 2021, promulgated in December 22. It include significantly promote the startup businesses, entrepreneurship, and improve general business climate in the country. Various amendments have been made to this act, which includes the addition of a new definition for startup company, removal of requirement of filing of unaudited financial statements for private companies. Previously, the companies with paid-up capital of rupees 1 million or below were required to file unaudited financial statement. Now, this requirement has been removed through this amendment. Then the removal of common seal. Now, the companies are no more required to fix common seal or have common seal. Then elimination of filing of subscription money form for ease of doing business. Means at the time of incorporation of companies, the companies were required to submit the Form 1 regarding the subscription money. Now there is no more required to file this. Now new clauses have been added to allow private company to issue shares to new investors against their properties and to their employees against employee stock option schemes. Now the private companies can also adopt ESOPs. Now private companies can also have been out to buy back their own shares. Other important amendment includes allowing minority shareholders having 5% of shares to give notice for calling EOGM. Previously, it's for 10%. Now, board resolution through circulation will deem to be passed if approved by the majority of directors. Previously, all the directors were required to sign that resolution. Also, I would like to mention that presently the corporate regulatory framework administered by the Commission exists in multiple set of regulations framed under Section 512 of the Act. Now, Commission took initiative to review and compile the existing regulation as a single compendium form in the form of Companies Regulation 2022. These draft regulations have been placed on SECP website for soliciting public comments. In line with the Commission's objective of facilitating corporatization, through these regulations, the number of existing forms that were provided in 9 regulations that were 75. Now these forms have been reduced from 75 to 27 only. Moreover, there were 13 format of different applications have been provided. Previously, 13 applications were provided in the existing regulations. But in the proposed regulations, the number of applications and annexures have been reduced from 13 to 7. Moreover, a number of amendments have also been made in the existing regulations, proposed regulations, for the sake of clarity. In conclusion, I would like to leave you only one thought about the purpose of this section. From our perspective, this session is an important step in the essential process of interactive cooperation among the regulator and the corporate sector to create an awareness of the benefit of the corporate legal status and to provide information on the corporate issues and the corporate filing requirement, as well as various mode of exit, that is in the form of easy exit. I hope that by the end of this section, you would have recognized the real benefit of the corporate compliance, and thank you for listening. Thank you. Thank you very much, Jawad sir. This today's session is इसमें दो sections होंगे. एक मिस सिद्रा करेंगे भी, which is major post incorporation compliance requirements. उसके बाद संजय साहब आएंगे for modes of exit of companies. For that, I now invite Ms. Sidra Mansoor. She's additional registrar of Company Registration Office. She's a master's in business economics, law graduate, and an affiliate member of ACCA. She has over 20 years of experience, and she'll be talking to us on major post incorporation requirements. Please.
Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Imran related to create awareness at this platform. Post incorporation compliance requirements. First of all, my first slide relates to what is a company, but you must be aware that it's a legal entity which is formed by a person or association of persons for lawful purpose and registered under the Companies Act, and we also have a limited liability partnership act. And as Shivasa already told, there are almost more than 182,000 companies registered with the CCP, out of which around 58,000 are only registered with Company Registration Officer Board. There are different types of companies, as you must all already be aware. There are limited companies, unlimited companies, then there can be companies limited by shares. There can be companies limited by guarantee. Then for public companies, they can be listed or unlisted companies, companies having share capital, association, non-for-profit, different kinds of companies. And there are different compliance requirements for different types of companies. And I will just cover the major ones. I will just skip this. This is just about the minimum members, directors requirement for different kind of companies. And I will just briefly tell in case of a single member company, there is just one member and one director. And single member company is required to have at least one member or one director throughout its life. Similarly, private company, it's 2 members and 2 directors up to a maximum limit of 50 members. Then public unlisted company, it should have 3 members and 3 directors. There is no maximum limit on number of direct members. For listed, it's 7 members and 7 directors. Then there are associations non-for-profit as well, on which all laws related to public unlisted companies are applicable. Now I will briefly talk about what are the immediate post-incorporation requirements. Once a company is incorporated, there are certain requirements under the law which the company has to comply with immediately after its incorporation. That is establishment of first registered office address. Previously, there was a requirement to establish and notify a registered office at the time of incorporation, but that requirement was later on relaxed. And now at the time of incorporation, a company can just mention its correspondence address in the incorporation application, and later on it can decide about its registered office within 30 days of the incorporation. Then there is appointment of first auditor, and that is also not applicable on every company. And I will cover it in a bit of detail later on. Then there is a requirement of appointment of company secretary, and that too is applicable. Like for public unlisted companies, it's mandatory to appoint a company secretary, but for private companies, it's optional. They can appoint if they like, and if they don't appoint, it's not a violation of law. Then appointment of legal advisor under the Legal Advisor Appointment Act, and that also has a criteria to which companies require a legal advisor and which do not. Private companies having paid a capital of 7.5 million above and by the company advisor, as well as association non-profit guarantee companies, etc. Then there's a commencement of business requirement that is only applicable for public companies, because private companies can commence their business from day one. Once they get their incorporation certificate, they can immediately start their business. There is no additional requirement except maybe from other authorities, but not from the CCP. As regards public unlisted company, unless they obtain a commencement of business certificate, they cannot commence their business, they cannot borrow money, they cannot carry on their business. Now, it's about maintenance of registered office address. As I already told that after incorporation, a company within a period of 30 days, it is required to maintain a registered office in which, apart from maintaining statutory accounts and books, all communications and notices shall be addressed. If there is any change in that registered office, once if you have notified a registered office, but you can always change it.
And if you change it, there is a specified form 21, on which it is to be reported to the registrar office within 15 days of the date of change. As regards, if you change your registered office from one province to another, or a city to another within Pakistan, not forming part of a province, that requires a special resolution, which is to be passed in general meeting and also requires approval from the registrar. But as regards within a province, you can change your registered office without special resolution. Then there are certain meetings and proceedings which are required to be conducted by a company, like statutory meeting. Section 131 of the Companies Act relates to statutory meeting of a company. Basically, every public company having a share capital is required to hold a statutory meeting within 180 days from the date at which the company is entitled to commence business, or within 9 months from the date of its incorporation, whichever is required. Now, there is a proviso as well to this provision, which provides that if annual general meeting is held earlier, then there is no need to hold a statutory meeting for a public company. So it's up to the company if it wants to hold statutory meeting, it can, and if it has annual general meeting earlier, it's not required. Then there is an annual general meeting which every company is required to do within 16 months from the date of its incorporation, and subsequently once in every calendar year within a period of 120 days following the close of financial year. Single member company, of course, is exempt from this. Then there is an extraordinary general meeting, which is a meeting of the members other than annual general meeting, which can be called by the board for decisions which require approval of the company, or you can say shareholders. Then once a company is incorporated, it has already a board of directors and chief executive. But as per Section 197 of the Act, every company shall within a period of 15 days from the date of appointment of any person, directors and officers, including the chief executive, company secretary and other officers, or any change among them, or in any of their particulars, file with registrar a return in the specified form 29. अब इसमें ये है कि चेंज इन पर्टिकुलर सिर्फ ये नहीं है कि वो अपॉइंट हुए या वो रिटायर हुए या वो रिमूव हुए या इस तरह की चीजें नोटिफाई करनी है. इवन अगर डायरेक्टर के एड्रेस में भी चेंज आती है तो दैट इज आल्सो अ चेंज इन एंड या उसके अदर डायरेक्टरशिप्स में. बट यूजुअली उसकी फाइलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट चेंज इन पर्टिकुलर्स मीन कि जो पर्टिकुलर्स फॉर्म 29 के फॉर्मेट का हिस्सा है उसमें किसी में भी चेंज आती है तो दैट शुड बी नोटिफाइड इन फॉर्म 29 टू द रजिस्ट्रार विदिन 15 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज. फर्स्ट डायरेक्टर्स उनकी टर्म प्रोवाइडेड है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं दे शैल होल्ड ऑफिस अंटिल इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. अब जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती तब तक कंपनी नंबर इंक्रीज कर सकती है बिफोर द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स. उसके बाद ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो हैं फर्स्ट डायरेक्टर जो होते हैं दे रिटायर ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. In case of subsequent directors on expiry of term of office of directors 3 years, which is mentioned in section 161 of the Act, and directors who are retiring, they continue to perform their functions until their successors are elected. एक नई प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2017 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस में नहीं थी, और वो था फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट. बिकॉज अक्सर ऐसा होता था कि कोई नए इन्वेस्टर्स कंपनी में आए, नए शेयर होल्डर्स आए ड्यूरिंग द पीरियड इलेक्शन, अभी कंपनी का ड्यू नहीं है, 3 साल बाद ड्यू है, तो उनकी ये मजबूरी हो जाती थी कि कोई एग्जिस्टिंग, क्योंकि मिड टर्म में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता था, तो उनकी ये मजबूरी हो जाती थी कि कोई रिजाइन करे तो उसकी जगह उनको अपॉइंट करें. मगर अब ये सेक्शन 162 जो है ये फ्रेश इलेक्शन की प्रोविजन देता है. इसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि रिक्विजिट शेयर होल्डिंग जो है उसने एक्वायर की हो ड्यूरिंग द, मतलब बिटवीन फर्स्ट इलेक्शन एंड नेक्स्ट इलेक्शन डायरेक्टर्स. उसमें अगर उसकी शेयर होल्डिंग है और वो रिक्विजिशन करता है कि भाई नए नए डायरेक्टर बनना है, होल्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, तो कंपनी कैन डू. उसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आप फ्रेश इलेक्शन करते हैं तो उसमें ये नहीं है कि आपका नंबर फिक्स है 7 डायरेक्टर्स के और आप उसको रिड्यूस कर लें 5 डायरेक्टर्स के. मतलब एडिशनल तो आ सकते हैं मगर ये वाइस वर्सा है.
commencement of business by a public company, ये section 19 of the Companies Act है that deals with commencement of business by a public company. Under section 19 of the law, a public company cannot start its operations or exercise any borrowing powers unless the shareholders have paid the value of their shares as specified in the memorandum of association. A declaration by the chief executive or director is required to be filed with the registrar that all conditions of commencement have been fulfilled. And in case the company has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for its shares, then it is required to file a statement. इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने बिजनेस कमेंस करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो रेज करना होता है। आमतौर पे पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में ये प्रोवाइडेड होता है कि कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस आफ्टर रेजिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस एंड दिस। बट एक्चुअली समटाइम्स होता है कि मॉडल मेमोरेंडम यूज हो जाता है जिसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज नहीं था। उससे ये कंफ्यूजन आती है कि फर्स्ट के आपका ऑथराइज कैपिटल अगर 1 बिलियन भी है और आपका पेड अप कैपिटल अगर 100,000 भी हो सकता है, तो होता क्या है कि कंपनी को फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट अपनी ऑथराइज कैपिटल रेज कर, बिकॉज देन एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 19 दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिक्वायर्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो इस चीज का जब भी कोई पब्लिक कंपनी बने तो उसमें ये क्लॉज जरूर ऐड करना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट व्हिच एट विच डायरेक्टर्स एग्री टू कमेंस द बिजनेस। इसमें स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं जिनका अदर लॉज के अंदर भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एनबीएफसीज हैं, कुछ उनकी डिफरेंट इक्विटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी लाइसेंसिंग कंडीशंस। तो जब इस तरह की चीज हो तो उस क्लॉज को भी जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। इट मेक्स थिंग्स इजियर लेटर ऑन, क्योंकि यूजुअली ये प्रॉब्लम आती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीटिंग नहीं होती और स्टेटमेंट ही ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल हो जाती है और बाकी। बट इसमें ये है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ज़्यादा है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कम है, तो फिर देयर अदर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, फर्दर कैपिटल आप रेज कर सकते हैं, उसके लेटर डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म 3 वगैरह, और फिर आप कमेंसमेंट के डॉक्यूमेंट्स। अगर स्पेशलाइज्ड कंपनी है तो उसकी लाइसेंसिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले मीट करें एंड देन यू अप्लाई। Then there are provisions regarding arbitration in memorandum and articles of association of a company that is also possible under the law under section 32 and 38 of the Act. Procedures for alteration of the memorandum and articles of association have been simplified. Arbitration takes effect on the passing special resolution. First का कोई article है जरूरी आपने डालना है कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें मेंबर्स की मीटिंग में, उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म 26 होता है, वो फाइल करें, सर्ट अमेंडेड आर्टिकल्स हमारे पास फाइल करें, टेक्स इफेक्ट। चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज आल्सो पॉसिबल। कंपनी अगर टेक्सटाइल में है बट कंपनी वांट्स टू नाउ कैरी ऑन पावर जनरेशन बिजनेस या एनी अदर बिजनेस एज इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल एंड दैट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। सिर्फ अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद फॉर्म, जो कि जनरल प्रोविजन है फॉर्म रेगुलेशंस में सारे फॉर्म्स प्रोवाइडेड हैं। अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार रिक्वायर्ड है फॉर चेंजिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने पहले बताया, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाए, कोई बिजनेस एक्टिविटी ऐसी वो कैरी ऑन करे कि फर्स्ट करे मैं तो एक ब्रोकरेज हाउस फॉर इंस्टेंस, जस्ट एज्यूम कि मैं एक ब्रोकरेज हाउस करना चाहता हूँ, जबकि पहले उसके कोई ऐसे नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो फिर लाइसेंस पहले या ऑब्टेन करेगा और उसके बाद लाइसेंस के बाद उसका जो है ये बस फाइल करेगा। अच्छा, ये सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही सिंगल मेंबर और डायरेक्टर होता है, तो उसमें नॉमिनी की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। अब वो नॉमिनी जो है अंडर सेक्शन 14 अ सिंगल मेंबर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट चेंज इन नॉमिनी और चेंज इन पर्टिकुलर्स देयरऑफ और अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ अ सिंगल मेंबर कंपनी। भी अगर प्राइवेट कंपनी है वो कन्वर्ट हुई है तो उसने भी ये फॉर्म फाइल करना और 15 दिन के अंदर करना है जब वो चेंज हुई है। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट हम फॉर्म्स पे फिल करते हैं एंड वी सबमिट। जैसे फॉर्म ए शेयर होल्डिंग है तो डायरेक्ट राइट डाउन ऑन फॉर्म ए कि व्हाट इज द कंपनी के बैकएंड पे रिकॉर्ड समटाइम्स होते हैं, समटाइम्स छोटी कंपनीज के बैकएंड पे ऐसे रिकॉर्ड्स होते नहीं, तो 1-2 पेपर्स होते हैं उसकी बेसिस पे फॉर्म्स फिल हो जाते हैं। इलेक्शन का भी ये है कि कोई रजिस्टर्स का ये एज सच वो इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है, यूजुअली फैमिली ओन्ड कंपनीज होती हैं, स्पेशली प्राइवेट, तो ऐसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस पे फोकस नहीं होता।
मगर एक चीज यहाँ पे मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि जितने भी स्टेचुटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स जो जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म रेगुलेशंस के अंदर प्रोवाइडेड हैं, फॉर्म ए, फॉर्म 29 जितने भी हैं, वो फॉर्म बजाते खुद कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक फॉर्मेट है जो आपको दिया गया है, जिसके ऊपर आपने इंफॉर्मेशन हमें रिपोर्ट करनी है, एंड दैट इज फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। बट बैक एंड में कंपनी के पास क्या होना चाहिए, उसमें लॉ में बकायदा प्रोवाइडेड है कि कंपनी की अपनी बुक्स होनी चाहिए, कंपनी के अपने रजिस्टर्स होने चाहिए, और वो स्टेचुटरी रजिस्टर्स कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, और उनमें जो इंफॉर्मेशन है कंपनी की शेयर होल्डिंग की, फॉर इंस्टेंस डायरेक्टरशिप की, का एक्सट्रैक्ट आप फॉर्म के अंदर लिखें, ठीक है। तो दैट इज द मेन थिंग, और उससे ये होता है कि जो है ट्रांसपेरेंट रहता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस रहती है, और ये कंफ्यूजन नहीं अराइज होती कि कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और काफी इश्यूज से कंपनी बच जाती है। जैसे फॉर इंस्टेंस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, फिर रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अदर सिक्योरिटीज है, ट्रांसफर बोर्ड अप्रूव करता है, बट ट्रांसफर एक डेट ऑफ, आपने देखा होगा फॉर्म पे होती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर और इस तरह की चीज। अब उसका क्या मतलब है कि वो रजिस्टर में जब बोर्ड ने अप्रूव कर दी, उसके बाद वो रजिस्टर में एंटर हुई, वो रजिस्टर में एंटर हो गई, हमें तो अपनी 25% से कम है तो फॉर्म ए भी रिपोर्ट करनी है ना। तो वो उस रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी जो डेट है वो रिपोर्ट करें, ये नहीं कि हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इस डेट को। तो बैक एंड का रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। कंपनी अगर अपने शेयर्स बाय बैक करती है, उसका रजिस्टर, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, डायरेक्टर जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, एवरीथिंग इज टू बी एंटर। फिर मॉर्गेज चार्जेस हैं, इसका भी रजिस्टर है कंपनी कि कंपनी ने इसका भी जो लोन दिए हैं बैंक से, जो चार्जेस रजिस्टर करने हैं, there's a register। फिर और भी हैं, टू नेम अ फ्यू, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें डायरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं। फिर मिनट बुक कंपनी ने मेंटेन करनी होती है, बोर्ड रेजोल्यूशंस की, मतलब जो बोर्ड की मीटिंग्स की मिनट्स होते हैं, शेयरहोल्डर कमेटी के मिनट्स होते हैं, और बेनिफिशियल मोशन वगैरह, ये सारे रजिस्टर्स रिक्वायर्ड है बेसिकली। अच्छा, अब जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है कंपनी की, ब्रॉडली वो 3 कैटेगरीज में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो कंपनीज एक्ट और कंपनी जनरल फॉर्म रेगुलेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, उनकी ब्रॉडली क्या कैटेगरीज हैं। कुछ फाइलिंग्स जो है वो इवेंट बेस्ड है। फर्स्ट क्या, एक डायरेक्टर ने रिजाइन किया तो एक इवेंट क्रिएट हुआ और उसके 15 दिन के अंदर आपने हमें बताना है, वो इवेंट बेस्ड हो गया। क्वार्टरली फाइलिंग है, जैसे लिस्टेड कंपनीज वगैरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो क्वार्टरली अकाउंट्स होते हैं वो फाइलिंग होगी। एनुअल फाइलिंग होगी, फॉर्म ए एनुअल रिटर्न वगैरह। तो कुछ एनुअल फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इवेंट बेस्ड हैं, कुछ क्वार्टरली। एनुअल फाइलिंग जैसे मैंने जिक्र किया, एनुअल रिटर्न, फॉर्म ए, बी या सी, और क्वार्टरली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इवेंट बेस्ड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, ऑफिसर्स, बेसिकली जो कंपनी के हैं। एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड हुई है तो उससे भी एक इवेंट हुआ है, फॉर्म है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड हुई है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, कोई चीज हुई है, उसकी फाइलिंग। फिर इलेक्शन है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर आपने करना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं। कैपिटल इंक्रीज करते हैं, ऑथराइज या पेड अप, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लोन लेते हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराते हैं, उसमें कोई चेंज होता है, वो सेटिस्फाई होता है, उसकी वो इवेंट बेस्ड है। मेमोरेंडम, बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई चेंज आती है तो वो इवेंट है। सर ये काफी डिटेल्ड है, इसको मैं ब्रीफली कवर करूंगी। रजिस्टर्ड ऑफिस का तो मैंने आपको पहले बता दिया। एक रिक्वायरमेंट थी फॉर्म 1 फाइलिंग की कि कंपनी ने, जो कि अब खत्म हो गई है, जो शहबाज साहब ने जिक्र किया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो कि 3 दिसंबर 2021 से इम्प्लीमेंट हुआ था। उसने एक रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी, जो कि पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी थी, कि जो भी शेयर सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइबर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो 30 दिन के अंदर जो थे पैसे उन्होंने कंपनी में जमा कराने थे, और 45 डेज के अंदर कंपनी ने हमें एक ऑडिट का सर्टिफिकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट देना होता था कि वेरीफाई करते कि कंपनी ने ये पैसे ले लिए हैं, और साथ एक फॉर्म। वो रिक्वायरमेंट अब खत्म कर दी है, कीपिंग इन व्यू के कंपनीज को फैसिलिटेट किया जाए। फिर फर्स्ट ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स किसके एप्लीकेबल, सारी कंपनीज के एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 मिलियन। अभी तक यही है, और अगर कमीशन कोई हायर अमाउंट किसी वक्त नोटिफाई करे तो 1 मिलियन तक जो कंपनीज हैं प्राइवेट लिमिटेड, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ऑडिटर या वो अकाउंट्स को ऑडिट करें।
और पहली जो अपॉइंटमेंट होती है कि 90 डेज में करनी होती है, और जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो वही 14-15 डेज का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी, मैंने आपको पहले बता दिया कि पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करें, एंड इट्स मैंडेटरी, और इसकी वायलेशन के पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी फॉर पब्लिक कंपनीज। लीगल एडवाइजर है, ये भी मैंने बता दिया, कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹7.5 million और अबव, ऑल कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड ऑल एसोसिएशंस अंडर सेक्शन 14। और ये जब भी अपॉइंट होंगे तो फॉर्म 29 फाइल होगा। फिर मैंडेटरी एनुअल इफ यू कैन ठीक, फॉर्म ए बी एंड सी है। फॉर्म ए जो है वो एनुअल रिटर्न है, ये सब कंपनियों ने 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है एनुअल जनरल मीटिंग से, या अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो कैलेंडर ईयर का फाइल होता है। और फॉर्म बी जो है वो जो कंपनीज का शेयर कैपिटल नहीं होता उन्होंने फाइल करना होता है। ये सब के लिए मैंडेटरी है एक्सेप्ट जो है ये सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी जिस कंपनी का कोई फर्स्ट या चीज नहीं आया वो कहती है, इसके अलावा जो कंपनीज हैं कि मेरे शेयर होल्डिंग सारी डिटेल पिछले साल में ली है, तो वो फॉर्म सी फाइल कर सकती है, विच इज जस्ट ब्रीफ फॉर्म जिसपे यही लिखा होता है कि कोई चेंज नहीं है पिछले साल से। फिर एक इनएक्टिव कंपनी होती है, हसन डिटेल में बताएंगे, वो उनका एक एनुअल रिटर्न होता है विच इज फॉर्म डी, जो हसन आपको एक्सप्लेन करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। फिर ऑडिटेड अकाउंट्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, अदर कंपनीज के लिए है, मगर उसमें 10 मिलियन तक एग्जेम्प्ट है पेड अप कैपिटल। अगर अप टू 10 मिलियन या 10 मिलियन से कम है तो अकाउंट्स हमारे पास फाइल नहीं करने, अगर 10 मिलियन से अबव है तो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स हमारे पास फाइल करने हैं। और ये सारी कंपनीज ने प्राइवेट और पब्लिक अनलिस्टेड 15 दिन में करने हैं, और लिस्टेड कंपनीज के लिए टाइम जरा ज्यादा है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसकी टाइमलाइंस हैं। डायरेक्टर्स की प्रोविजंस मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, एजीएम का भी मैंने पहले बता दिया है आपको, रजिस्टर्ड ऑफिस का भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी मैंने आपको बताया। उसके अंदर जो यूजुअली डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी शैल कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर एक्सेप्टेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 19B एंड सेक्शन 19, जिसमें फॉर्म 23 है और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस है, जो कि बेसिकली एक तो डिक्लेरेशन है कि सारी कंडीशंस मीट हो गई हैं, और एक स्टेटमेंट है व्हिच इज जस्ट लाइक अ सर्कुलर अगर आपने फर्दर कैपिटल भी रेज करना हो। स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी मैंने आपको बता दिया, इसका रेलेवेंट रिटर्न फॉर्म 25 है, और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग से 21 दिन पहले फाइल। ऑथराइज कैपिटल कंपनी इंक्रीज कर सकती है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और फॉर्म 7 और फॉर्म 26 15 दिन के अंदर फाइल करना है हमारे पास। अगर पेड अप कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 1783 ऑफ द एक्ट है, उसमें पहले ये था कि ऑफर लेटर था, सिर्फ कि ऑफर लेटर्स जो हैं वो फाइल भी नहीं था, सबमिट का वर्ड था, तो वो जस्ट फॉर्म 3 जब हमारे पास फाइल होता था अलॉटमेंट का तो उसके साथ लगा देते होते थे, मगर ये अमेंडमेंट हुई और उसमें आप सर्कुलर अलॉन्ग विद ऑफर लेटर्स, उसमें फी की रिक्वायरमेंट्स हो, इसकी फाइलिंग में थोड़ा सा इशू होता है, उसके फॉर्मेट नहीं है, मगर वो मिसलेनियस विद पेमेंट का हमारा मॉड्यूल है, उसमें स्कैन इमेज के तौर पे फाइल किया जा सकता है। इसमें ये है कि जो मेजर रिक्वायरमेंट है पेड अप कैपिटल जब इनहेंस करते हैं फॉर्म 3 फाइल करते हैं आप कैश के डिजिटल अलॉटमेंट करते हैं कि कंपनीज ऑडिटर में एक रिपोर्ट या सर्टिफिकेट साथ देना है कि कंसिडरेशन अमाउंट जो है शेयर्स का दैट हैज बीन रिसीव्ड इन फुल बाय द कंपनी एंड शेयर्स हैव बीन इशूड टू ईच अलॉटी, ये उसकी जो है मेन रिक्वायरमेंट है। और बाकी अदरवाइज इन कैश की अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें मेजर जो है वो टाइटल ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है और वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये 2-3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर बोनस इशू करते हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन साथ जिसमें बोनस का रेशियो क्वेश्चन वगैरह सारा लिखा हो कि क्या एलोकेशन है उसकी, वो साथ लगाना जरूरी है। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है उसमें इस तरीके से है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मोर देन 25% अगर कंपनी को फिर फॉर्म फाइल करना, ये 25% वन टाइम नहीं है। फर्स्ट किया आज आपकी एनुअल जनरल मीटिंग तो उस पर पूरे साल के दरमियान जब 25% का थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा
टोटल ट्रांसफर्स 25% और मोर हो जाएंगे तो आप फॉर्म 3A फाइल, जब वो थ्रेशोल्ड मीट होगा उसके 15 दिन के अंदर फाइल करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मेट है फॉर्म 3A जो रेगुलेशन में प्रोवाइडेड है। फिर रिटर्न ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप है सेक्शन 452 के अंदर। ये फॉर्म 3132 होता है। इसमें ये है कि अगर कोई चेंज आए, वन टाइम तो फाइलिंग मस्ट थी, उसके बाद चेंज की सूरत में है। फिर मॉर्गेज चार्जेस हैं, जब चार्ज आप रजिस्टर कराते हैं तो 30 डेज में रिक्वायरमेंट है कि डेट ऑफ क्रिएशन जो होती है, फर्स्ट के आज अपने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए, चार्ज क्रिएट किया, तो 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार के साथ फाइल करनी है, रजिस्टर करानी, वो चाहे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है, चाहे मॉडिफिकेशन है, चाहे सेटिस्फेक्शन है, जो भी है आपका, उसमें आपने 30 दिन के अंदर रजिस्टर कराना है। अगर 30 दिन के अंदर आप फाइल और रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो उसमें फिर एक्सटेंशन इन टाइम सीक करना पड़ेगा, जिसका एक अलग से प्रोसीजर है और उसकी फी भी है। तो इसलिए 30 डेज की प्रोविजन है। फिर एक रिकॉर्ड ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप है, यूबीओ, ये सेक्शन 123A में। ये फॉर्म 45 है जो कि बेसिकली डिक्लेरेशन है। ये भी हर साल एनुअली फॉर्म ए के साथ फाइल करनी होती है। इनएक्टिव स्टेटस के बारे में हसन आपको डिटेल में अपनी प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि अगर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स जैसे फॉर्म ए बी एस दो फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कंसेक्यूटिवली फाइल ना की हो, तो रजिस्ट्रार शैल इशू अ नोटिस टू दैट कंपनी एंड एंटर द नेम ऑफ सच अ कंपनी इन द रजिस्टर maintained for inactive companies and ultimately strike these defunct companies off the register. फिर इजी एग्जिट, ये भी हसन डिटेल में बताएंगे। इसको सेक्शन 426 डील करता है और ये उन कंपनीज के लिए है जिनके कोई नॉन एसेट्स और लायबिलिटीज ना हो और इसके बकायदा एप्लीकेशन का प्रोसीजर्स है, इसकी रेगुलेशंस अलग से हैं, वो इसमें कवर करेंगे। अमेंडमेंट्स का जो कंपनीज एक्ट में हुई थी उसका शहबाज साहब ने ब्रीफली जिक्र कर दिया और उसमें कुछ मेन एक दो चीजें, मैं एक तो कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दी, जैसे स्टार्टअप कंपनी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, वो प्रोवाइड कर दिया। एक कॉमन सील थी कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी तो कॉमन सील बनाएगी, जो कि एक एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, वो खत्म कर दी। फिर सब्सक्रिप्शन मनी, मैंने आपको बताया कि जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं वो पैसे जमा कराएं कंपनी में 30 दिन के अंदर, वो खत्म हो गई इस कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए। प्राइवेट कंपनीज जो थी वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमारे पास फाइल करती थी, तो अब वो रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई, वो सेक्शन 234 ही खत्म हो गया। अब 10 मिलियन से ऊपर जो है वो फाइल करेंगी। फिर अदरवाइज एंड इन कैश की जो प्राइवेट कंपनीज थी उन पे एक लॉ में कोई प्रोविजन नहीं थी कि वो भी कर सकती हैं उनको। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में प्रोविजन नहीं थी कि प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं, वो भी हो गया। फिर एक और मेजर चीज हुई कि कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को अपने शेयर्स बायबैक करने की इजाजत नहीं थी, लिस्टेड कंपनीज को थी, वो भी अलाउ हो गया थ्रू कंपनीज अमेंडमेंट है और उसकी रेगुलेशंस भी अंडर प्रोसेस में होगी कंपनी। ये सारी उसी से रिलेट करें बेसिकली सेक्शंस के। सेक्शन 17 में अमेंडमेंट आई सब्सक्रिप्शन मनी के लिए, उसको चेंज किया। फिर सेक्शन 83 हमारा फर्दर इशू ऑफ कैपिटल से रिलेट कर रहा था और वो प्रोविजन जो थी साइलेंट थी अबाउट फर्दर इशू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर अदर देन राइट। और a new clause C add हुआ उसमें section 83(1) में for private companies for requirement for further issue of share capital in case of issuance other than right. It states that a private company if its articles authorizes by special resolution may offer further issue of shares to any person for cash or in kind consideration. अब ये पहले प्रोविजन नहीं थी, ये स्पेशली दी गई प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में हो कि वो किसी को और को कर सकती है, किसी थर्ड पर्सन को कर सकती है, तो वो भी प्रोविजन आगे उसके लिए उसके आर्टिकल में होना चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए तो वो कर सकते हैं। और ये नीचे जो मैंने आपको बताया कि पहले सर्कुलर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सर्कुलर की रिक्वायरमेंट भी इंट्रोड्यूस हो गई। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 234 जो था ये अबॉलिश होगी रिक्वायरमेंट, ये खत्म हो गई। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो है वो लेबल कर दिया कि प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं। बायबैक शेयर्स जो प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती थी वो इनेबल हो गया कि दे कैन आल्सो बाय बैक देयर शेयर्स। थैंक यू वेरी मच।
Thank you very much, Sidra, for detailed presentation. I guess after the questions, we will have the question session, answer session after the second presentation. फिर आप जरा note कर लीजिएगा whatever your questions are, तो हम एक दफा ही कर लेंगे, so we. हाँ, if that's okay with you. Mike here. Yeah, please. Yeah. If that is okay with you guys. हम पेरेंट मेंबर्स के साथ जितने भी जो आज के पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ शेयर करें। ठीक है। वैसे भी ये फेसबुक पे लाइव चल रहा है तो रिकॉर्डेड है, वहां से आप देख लीजिएगा ट्रेनिंग केस। कुछ चीजें मैंने उसमें अपने भारत को जो भी ग्राउंडिंग आती है वो बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए बहुत सकती है। अगर एक केस ऐसा हो कि आपकी एजीएम जैसे कि है और दिसंबर को आपके वोट इलेक्शन होंगे और 30 बात है और आपके 30 को आपकी एजीएम की और आपको 2 माह बाद इलेक्शन भी हो सकते हैं। इस वक्त में हम एजीएम के अंदर बोर्ड पे इलेक्शन वोट कर सकते हैं 2 महीने पहले। I think we will be able to do और आपने क्या है कि आपकी वो पहले कर रहे हैं। हमारे पास हमने 2 माह पहले हमारा बेटा करना है ईओजी इलेक्शन अगली या डिले से उसकी ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। उसके अलावा बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी है इसमें इससे आइडिया मिलता है कि आप इलेक्शन पहले कर सकते हैं। लेकिन उससे मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अगर ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? इलेक्शन वोट करने में जो इम्पेडिमेंट है वो मुश्किल है कि आप इसको तक नहीं कर सकते। जो भी लॉ में है कि उसमें इम्पेडिमेंट जो भी उसमें भी टाइम लाइन से करने डिले ना हो और सेक्शन को डिले की बात नहीं कर रहा हूं, यार अभी तो कौन बात कर रहा है? लेकिन बाद में वो सर्वे विड्रॉ हो गया और इतना भी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप आदमी लगे। एक क्वेश्चन होगा कि कॉमन सीट पर वो जब लॉ में उसको नहीं होगा उसको लेकिन वो फॉरेन में एप्लीकेबल है थोड़ा सा गाइड करने के ऐसी ही पोजीशन है। कॉमन सीट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनी एक्ट के अंदर जो भी अमेंडमेंट आई है उसको निकाल दिया है। कॉमन सीट होती है उसमें ये गाइड करने के लिए ऐसे ही किया है जिसका अभी मैंने अमेंडमेंट को डिस्कस नहीं किया हुआ बताया था मैंने आपको देखी बताया क्योंकि बताया था कि रिक्वायरमेंट बहुत है। वैसे एक्चुअली प्रॉब्लम से कर रहा हूँ लाइंस वगैरह अभी भी कॉमन सीट मांगते हैं वो लेकिन वो हमारा भी को अवेयरनेस कोई नहीं है वहाँ पे लाइंस में मगर ऐसी तो बात है तो आप उनको दिखाएं कि ये अगर जी मेरे ख्याल में
क्योंकि Exactly. बैंक का नेटवर्क इतना बड़ा होता है तो इसमें भी डिपेंड करेगा कि किस ब्रांच में गाड़ी वहाँ ऑफिसर क्या आप करेंगे। अच्छा बात की डॉक्टर ऑफिस भी होता है बैंक में लीगल डिपार्टमेंट होता है अनफॉर्चुनेटली वो लाइव आकर वो भी इतना स्टडी नहीं करते हैं वो जो अपनी उनका जो चला हुआ होता है उसको काफी ये पड़ेगा थोड़ी सी नॉर्मल देने की जरूरत है डेवलपमेंट इंस्ट्रा के गवर्नमेंट ऐसा स्टेटमेंट के साथ बातों जो है उनकी कुछ मांग है उसको सोची जा रही है ऐसी वर्क ऑफ लाइक ऐसा शेयर कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट वो वे तो यहाँ पे जो टेक्निकली और इशू आ रहा है वो इसकी ज्यादा ये ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी हमने फिर पोर्टल पे डाल दी या कोई भी कंपनी जो है ना या कोई भी एनी पर्सन कैन ऑब्टेन द डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज वो बैंक को दे सकता है और जो फिजिकल कॉपीज हैं उस पर बकायदा जो कॉपीज इशू हो रही हैं उन पर लिखा होता है नॉट फॉर बैंक पर्पस। इसके बावजूद भी बैंक्स जो है ना वो कंपनीज को कह रहे हैं कि जी कि आप लोग सर्टिफाइड कॉपीज फिजिकल फॉर्म में लेकर आएं। ऐसे ही तो इस तरह की कोई अगर प्रपोजिशन आपके नॉलेज में आती है तो आप हमारा SDMS पोर्टल है SEC की वेबसाइट पे तो उस बैंक का नाम जो आपसे रिक्वायर कर रहा है या उस ब्रांच का एड्रेस एटलीस्ट वो चीज़ हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि फॉर उनको इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए हमारा हेड ऑफिस डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट कर लेगा और हम तो स्टेट बैंक भी उनको द्वारा नहीं वो आपकी बात ठीक है। देखिए उस पर कंप्लेंट मोड पे चले जाएंगे हम। मेरा ख्याल है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए एक कोई आपकी तरफ से कोई ऐसी उसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दूं जिस तरह शहबाज साहब बता रहे हैं वो इशू आता है लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा उनके साथ डिस्कस करें भाई कि भाई ये चीज़ अबॉलिश हो गई कुछ बैंकर्स मान भी लेते हैं थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए। नहीं बात लेकिन बात वो ठीक है कि वो हार्ट टू हार्ट जो चल रहा है ना जो नया बंदा आया उसने उसको पिछले वाले ने जो बताया उसने वही करना है वो जब जाएगा तो वो करेगा। हाँ वो चेकलिस्ट अपडेट कर रहे थे इज राइट लेकिन ये इसमें थोड़ी सी हमारी भी गलती है कि हम फौरन जो चीज मांगते हैं कहते हैं अच्छा दे देते हैं हम उसको कहते नहीं कि भाई ये पढ़ लो कि ये चीज इस तरह नहीं है ऐसे हो गई जैसे आप कॉमन सीट की बात करें अबॉलिश हो गई है मैंने भी बैंक अकाउंट खुलवाया किसी ने नहीं मांगा है एक ने वो सर्टिफाइड कॉपीज के ऊपर एतराज किया तो मैंने उसको कहा ये क्यूआर की कोड है इसको स्कैन करना जो आपकी नहीं जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो चूंकि आती ही SCCP की वेबसाइट से है उसकी ईमेल से तो वो आप दिखाना आसान होता है समझाना कि यार देखें ये SCCP से आया है तो अब चेंज हो गया है। अब कॉमन स्किल आप कहेंगे यार वो तो खत्म हो गई हुई है वो यार ला निकालें समझाएं उसको वो समझाना बड़ा मुश्किल है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर्स। किसी और ने करना है तो क्वेश्चन आप एक मिनट मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि डायरेक्टर इलेक्शन के अलावा हम कब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं? देखिए ये तो जब आपका इलेक्शन ड्यू होगा उससे पहले ही आप उसको फिक्स करते हैं ना। ये तो लॉ में प्रोवाइडेड है कि उससे 35 डेज बिफोर ही आप नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो लॉ में प्रोवाइडेड है। ड्यूरिंग द पीरियड तो आप नंबर रिड्यूस नहीं कर सकते ना। नंबर इंक्रीज इस केस में कि अगर कंडीशंस 162 सेक्शन की मीट हो जाएं कि किसी ने शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लियो ड्यूरिंग द पीरियड तो फिर वो 162 एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज तो ड्यूरिंग द पीरियड तो नहीं कि आप आज कह दो कि मैंने 2 डायरेक्टर रखने हैं और जो है मेरी तो 5 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और आप ड्यूरिंग मिड टर्म जो है अपना नंबर ऑफ डायरेक्टर आर्टिकल्स में भी रिड्यूस कर लें और वो लोग फिर ऑटोमेटिकली निकल जाएं। इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है जी सिर्फ इस केस में हम कर सकते हैं कि जब शेयर होल्डर्स उनके पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा है तो वो अगर चाहें तो वो नहीं ज्यादा नहीं। फर्ज किया कि मैं आज शेयर होल्डर नहीं हूँ आज इलेक्शन ड्यू है इलेक्शन हो गया है कंपनी के डायरेक्टर इलेक्ट हो गए हैं ठीक है। अब ये है कि मैंने रिपोर्ट कर दिया इलेक्शन अब 3 साल की टर्म है। अब 1 जी। साल के बाद जो है होता ये है कि कोई नया शेयर होल्डर कंपनी में आ जाता है या तो जी, उसको जी। शेयर कोई ट्रांसफर कर देता है या उसको नए शेयर अलॉट हो जाते हैं कोई नया इन्वेस्टर आ जाता है। जी वो कहता है कि मैंने भी डायरेक्टर बनना है तो पहले तो ये था ना कि वो इस्तीफा देगा उसकी जगह खाली होगी फिर कैजुअल क्योंकि वैकेंसी राइज कैजुअल होती वैकेंसी थी। होगी या एग्जिस्टिंग पोजीशंस में से ऑलरेडी कोई खाली पड़ी हो जी तो मगर अब ये है कि वो अगर कहेगा तो वो फिर फ्रेश इलेक्शन कंपनी होल्ड कर सकती है कि भाई ये नया बंदा है ये जब डेट ऑफ इलेक्शन ही वाज नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जी नाउ ही क्वालिफाइज और वो रिक्वायर करेगा कंपनी को तो कंपनी कैन होल्ड फ्रेश इलेक्शन। मगर जी। उसमें भी ये नहीं है कि फिर उस एक को इलेक्ट करके और बाकी 4 निकाल दें और फिर नंबर रिड्यूस हो जाए। जी, उसमें जी। ये है कि नंबर बढ़ सकता बढ़ है नंबर सकते कम हैं। नहीं हो सकता। चलिए थैंक यू मैम। अच्छा मेरा इस पे question मेरा था। सिर्फ जी मेरा एक जी बिल्कुल इलेक्शन
जी एग्जैक्टली, बिकॉज ये इलेक्शन से रिलेट कर रहे हैं ना, कि वो 3 साल का टाइम पीरियड जो था उसमें कंपनीज को मुश्किल होती थी कि बीच में कोई इन्वेस्टर आया तो उसकी जेन्युइन एक रिक्वायरमेंट होती थी कि मैंने बोर्ड पे भी बैठना है, तो कंपनीज के पास ऑप्शन ही नहीं होती थी, वो एडिशनल डायरेक्टर और फिर उसकी जो है वो एजुकेशन वगैरह और सब शुरू हो जाता अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये दिस कंपनी अगर एक्सेप्ट करेगी तो फिर होगा जी ये fresh election में। जी बिल्कुल, ये तो ऑफ कोर्स फिर जब कोई इन्वेस्टर या कोई इस तरह शेयर होल्डर आता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब ये नहीं हो सकता ना, मैं कोई एक्वायर करके फिर करे कि जी करना ही है आपने, दैट्स मैंडेटरी नहीं है, दैट्स एट द विल ऑफ द कंपनी, इफ आई जी अंडरस्टैंड बिल्कुल, एट करेक्टली। द विल ऑफ द कंपनी ऑफ कोर्स, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपस में एग्री हों उनकी उसके मुताबिक ही है। इस पे अभी तक डिस्प्यूट हमने देखा तो नहीं कि कोई कहे कि मैंने कहा था ये इलेक्शन नहीं करा रहे। नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब आप कोई एक्वायर कर लेता है शेयर और बाद में कहता है कि जी अब होल्ड करें, तो मैंडेटरी नहीं है ऑन अ कंपनी कि वो होल्ड करेगी अनलेस एंड जी अनटिल इस तरह की इट प्रोविजन वांट्स टू, तो फिर होगा। 162 आपको दिखा के देते हैं यहाँ पर, इस तरह की कोई इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड इफ एग्रीड रादर। जी बिल्कुल। अभी ये नहीं हो सकता। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग, तो जो मिनिमम शेयर होल्डिंग कंपनी के आर्टिकल्स में अगर कुछ है या कोई जो कि रिक्वायर्ड है टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो अगर वो मीट हो, जनरली एक शेयर होता है, जनरली होता है, बट कंपनीज की एडिशनल हाँ, इन केस अगर वो पुरानी कंपनी है, मैं सिर्फ क्वेश्चन, Articles में इट्स नॉट provided होता है। मैंडेटरी कंपनी के ऊपर, ये इट्स बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर इसकी होल्डर। वर्डिंग पर wording है ना, वो है notwithstanding anything contained in this act, a member having acquired after the election of directors the requisite shareholding to get him elected as a director on board of the company may require the company to hold fresh election of directors in accordance with the provisions laid down in 159 of 159 which is to do with election of directors, वो again आपको फिर फॉलो करना होगा। थैंक यू वेरी मच। और ये जो फ्रेश इलेक्शन होगा ये सबका होगा, सिर्फ उसका Exactly, नहीं हाँ होगा, हाँ, पूरा होगा, पूरा बोर्ड डिसॉल्व will होगा, be a new term। न्यू टर्म। जी सर। ये सर मेरा क्वेश्चन ये वरना था, तो बल्कि डिस्प्यूट होगा ना जैसे जी, वो तो फिर सीधा सीधा डिस्प्यूट होगा ना, बैंक की अगर बात हो कंपनी रही नहीं थी तो चाहेगी was it- 1 मिलियन कैपिटल से कम के लिए तो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बैंक वाले जब फ्रेश कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो वो साथ ही कहते हैं फॉर्म 29 लेके आए, फॉर्म 29 ऑडिटर का लेके आए ये कहते क्योंकि हैं। फर्स्ट जब नई कंपनी बनती है तो हाँ। ऑडिटर के अलावा तो कोई और ऐसी चीज नहीं होती कि हम वो उसमें चेंज करके फॉर्म 29 वो दें फिर उनको। वही बैंक की अवेयरनेस का इशू आ गया थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा जिद करता है तो फिर आप हमें लिख दिया करें, हम क्योंकि आपको हम- लिख जी सर। कंपनी नहीं बन रही है उसके लिए तो बैंक के पास ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, आपको किसी सर, किस्म ये- के फॉर्म देने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक 10% बैंक होंगे जो ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, अदरवाइज 90% यही है कि वो फिजिकली डॉक्यूमेंट मांगते हैं। सर देखें, फिर हम चलें इसको हम दोबारा टेकअप कर लेंगे हेड ये तो ऑफिस के काफी साथ अर्से से या स्टेट बैंक आपने के ये साथ। कर दिया था पोर्टल तो, लेकिन वो बैंक वाले अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं सर। यार बैंक चेंज कर अच्छा लेंगे। इसमें ये है कि कितने बैंक जैसे चेंज करे सर, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जी, जाना। जैसे शहबाज साहब ने पहले कहा था ना, एक और भी क्वेश्चन यहाँ से आया था कि अगर इस तरह के इंस्टेंसेस आपके पास ज्यादा हैं तो डिटेल प्रोवाइड कर दें एसटीएमएस के ऊपर, उससे ये होगा कि जब स्पेसिफिक रेफरेंस होंगे जी कि कौन कौन से बैंक कहाँ कहाँ ये हो रहा है तो माइट भी और बेहतर एड्रेस हो जाए। इंस्टेंस है इस तरह का, मैंने कहा ना, अगर चलें आप वैसे नहीं करना चाहते तो हमारे साथ शेयर कर लें ताकि हम आगे जो है ना उसको टेकअप कर लें। हाँ हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे भी हाँ। और सेकंड ये है कि जैसे अभी बात हो रही है कि बैंक जो है वो रिफ्यूज करें, तो क्या ये मुमकिन है कि एसईसीपी अपनी वेबसाइट पे लगा दे कि ये बैंक्स जो है एग्रीड हो गए हैं देने में, ताकि वहां से उनको बताया जा सकता है कि ये एसईसीपी की वेबसाइट पे आपका नाम आ रहा है।
तो इन दोनों पे जरा क्वेश्चन पे कर दें। नहीं, ठीक है, ये जो आपकी प्रपोजल है ये बेहतर है। ये चीज़ भी हम लिख लेते हैं कि जी के वो जो बकायदा जो ऑनलाइन पोर्टल के हवाले से और अकाउंट ओपनिंग के हवाले से जो है ना हम अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर दें, ठीक है। ये बाकी मैंने पूछा था कि बाकी जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसकी ट्रू कॉपी जो है वो कब तक ऑनलाइन जो है अवेलेबल हो देखिए सर, जाएगी, जो या companies- आर्टिकल जो- और मेमोरेंडम जो है हाँ, वो भी सम टाइम चाहिए होता है उसमें certified होता copy? है ना, जो कंपनीज जो 2008 के बाद जब ई सर्विसेज पोर्टल हमारा लॉन्च हुआ था उसके बाद से कंपनीज इनको ऑनलाइन बननी शुरू हुई, उनका तो रिकॉर्ड ऑनलाइन ही जनरेट हुआ, ऑनलाइन उसकी एक्सेस बैंक के पास है। लेकिन उससे पहले जो जो फिजिक मतलब 1933 की कंपनीज भी हैं 30 या 40 50 इयर्स बैक, तो वो उनका भी फिलहाल जो है ना वो कॉपीज आपको फिजिकल ही लेनी पड़ रही। इसी तरह ही मैं जो डिजिटल सीटीसी का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर उसमें कॉम्बिनेशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स का, तो आप आई बिलीव अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसमें फिर ये होता है कि हम उसको अटैच करते हैं फिजिकल को खुद से। ऑनलाइन तो ऑटोमेटिकली आपके पास चली जाती है सिस्टम के थ्रू ही, अगर आपके और मगर अगर आपके कोई फॉर्म ऐसा है जो कि पार्ट है सिस्टम का बट इट्स अ मैनुअल डॉक्यूमेंट, तो वो डिजिटल सीटीसी हमारे पास आती है और हम वो मैनुअल डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके उसको कंप्लीट करते हैं। जो ऑनलाइन complete अप्लाई का है मतलब तो। किया जा सकता है जैसे? जी, अगर वो अवेलेबल है तो ये तो चंद कंपनीज ही होंगी, अगर यूजुअली किसी मिलता का नहीं नहीं है, जैसे available फॉर्म 10 है, बैंक कहता है आपको जी फॉर्म 10 की एक्नॉलेजमेंट तो मिल गई है, सीटीसी कॉपी दे दें, जी। वो मैनुअल कॉपी लेनी पड़ती है। नहीं, इसी वो तरह तो बैंक आर्टिकल की या आपको जिद मेमोरेंडम कर रहा है की, ना, वो तो बैंक कह रहा है ना। अदरवाइज ये है कि आप अगर मैनुअल भी फॉर्म फाइल करते हैं हमारे पास, तो हम खुद से उसको एंटर करते हैं ना सिस्टम के अंदर। ऑनलाइन अप्लाई किया फॉर्म 10। हाँ, तो वो जी। ये होगा कि वंस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो डिजिटल सीटीसी का जब मॉड्यूल आप फिल करेंगे, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही होगी, उसमें फॉर्म 10 वो अपीयर हो रहा होगा और आप वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। वो सिस्टम का पार्ट होगा। जब आप उसको अप्लाई कर देंगे तो वो सिर्फ उसमें एक फर्क होगा मैनुअल डॉक्यूमेंट में कि वो रिक्वेस्ट रजिस्ट्रार के पास आ जाएगी और हम उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है, मगर वो कंप्लीट हो जाएगा और वो डिजिटली ही जाएगा, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट विद ऑल दी जो भी उसके अंदर वाटरमार्क्स या जो भी रिक्वायरमेंट है डिजिटल। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी का कंपनी का जैसे भी बात हुई थी कि पुरानी कंपनीज हैं, तो अगर अपना मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सर्टिफाइड कॉपी के लिए अटैचमेंट करके, तो उनको वापस मिल जाएगा। जी, वापस मिल जाएगा। अगर वो ई सर्विसेज का पार्ट होगा तो आपको जरूर वापस मिलेगा, मगर ये है कि अगर आपको बहुत पुराना कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि उसका पार्ट नहीं है, फॉर रिकॉर्ड पर्पसेज या कोर्ट में या कहीं देना है, तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर जितनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना वहाँ पे अवेलेबल, वो सब आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स। मैडम एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड। अगर कंपनीज है उसमें 2 डायरेक्टर हैं और अगर एक डायरेक्टर की जैसे डेथ हो जाती है तो बाकी जो उसके लीगल हायर हैं वो तो उसके बच्चे ही होंगे, तो उस केस में फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर का क्या तरीकाकार होगा अगर उसके बच्चे हैं? जी, वो बेसिकली ट्रांसफर उसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, और वो होती है थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब उसमें पहले तो सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह कोर्ट्स का था कि वो सक्सेशन एक सर्टिफिकेट लेके आते थे, क्योंकि लीगल हेयर्स हम तो डिसाइड नहीं कर सकते कौन है ना, कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती जब तक कि डिक्लेयर नहीं होता, उसका एक प्रोसीजर है। और अब नादरा से भी इशू होना शुरू हो गया ये सक्सेशन वाला सिलसिला, तो वो जब लीगल हेयर्स डिटर्मिन होंगे उस वक्त वो ट्रांसमिशन, वो फिर लीगल हेयर्स जो हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या जो भी है कोर्ट का ऑर्डर या जो भी उनके पास है, वो कंपनी में एप्लीकेशन देंगे, वो लगाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, फिर वो शेयर्स ट्रांसफर होंगे लीगल हेयर्स को अकॉर्डिंग टू दी जो भी उनका हिस्सा है। तो यानी कि जो उनके बच्चे होंगे वो भी फिर फॉर्म का पार्ट बन जाएंगे? जी बिल्कुल बन जाएंगे। वंस वो लीगल हेयर्स हो जाते हैं, कहते हैं कि जी इनके फादर के जिनकी डेथ हो गई है उनके फर्ज किया 5000 शेयर्स थे, फिर जो भी हिस्से विरासत में होते हैं जैसे कि, ठीक है, उसके हिसाब से फिर उसको एलोकेशन होती है। वो कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं और जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है, अप्रूव करता है। उसके बाद वो फिर अगर 25% तक है चेंज, तो फिर तो फौरी तौर पे हमें 15 दिन के अंदर फॉर्म 3A पे आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो फॉर्म A में हमें रिपोर्ट हो जाएगा, मगर कंपनी के शेयर होल्डर तो वो बन जाएंगे ना फिर, क्योंकि वो थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्योंकि दो डायरेक्टर्स हैं या 2 शेयर होल्डर हैं तो 50-50 पे ही हैं वो तो।
तो 50% जी तो चाहे जो भी है, मगर जो लीगल प्रोसेस है वो तो फॉलो करना है ना। जी। और अगर फर्ज किया कंपनी ने 2 डायरेक्टर बनाने हैं, तो वो तो फिर एग्जिस्टिंग का है ना, कि वो एक आधा शेयर क्वालिफाइंग शेयर टाइप दे के डायरेक्टर फॉर द टाइमिंग बन जाए। बट जो एक प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू ट्रांसफर होनी है, ट्रांसमिशन होनी है, वो डायरेक्टर्स खुद से तो नहीं कर सकते ना, कि अपनी मर्जी से ये कह रहे हैं कि यही बैठे हैं, बट लीगल है इसकी पूरी एक डिटर्मिनेशन हो। जी 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 बिल्कुल। उसमें फिर आमतौर पे हाल ये होता है कि वो एक एक दो दो शेयर दे के वो अपना बोर्ड ने, हाँ एक बन, हाँ जी मेरे ख्याल में कैजुअल वैकेंसी के थ्रू हो जाएगा ना वो तो। बोर्ड एक बंदा है। ये इशू आता था, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। जी आपने एक चीज में ये प्रैक्टिकली शहबाज साहब एक इस पे जो आपने बात की ना कि अगर 2 शेयर होल्डर हैं, लेट्स सपोज 50-50 हैं और एक की डेथ हो जाती है, तो जब तक सक्सेशन नहीं होती, जो सर्टिफिकेट जो शेयर्स होते हैं वो डिसीज्ड के नाम पर ही होते हैं, अनटिल अनलेस कि उसमें सेक्शन 79 में है जो है ट्रांसफर टू नॉमिनी ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर। अगर एक मेंबर अपनी ज़िंदगी में किसी बंदे को अपना नॉमिनी डिक्लेयर कर देता है कंपनी के पास कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंपनी दैट विल बी बैक डेथ, तो वो मेंबर जो होगा ना, जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा, दैट इज डीम्ड टू बी अ मेंबर। लेकिन ये नॉर्मली आई थिंक मेरी नज़र से इस तरह की कोई चीज़ नहीं गुजरी कि कंपनी को इंटीमेशन दी गई हो। अल्टीमेटली अनटिल अनलेस की सक्सेशन सर्टिफिकेट ना आए, उस वक्त तक डिसीज्ड के नाम पर शेयर होते हैं। उसके बाद वो डिसीज्ड के नाम पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उन्हीं में से फिर जो शेयर होल्डर से होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर तो फिक्स होते हैं, तो नॉर्मली जो एक ही फैमिली ही नॉमिनेट कर देती है कि वन ऑफ द मेंबर्स एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। हाँ, लेकिन ये एड्रेस इस Actually, तरह हो अब- गया है कि जब वो जिस मीटिंग, हाँ जी, जिस मीटिंग में वो प्रपोज कर रहे होते हैं, कैजुअल वैकेंसी फिल कर रहे होते हैं, वो वही एक और तरह से भी एड्रेस हो गया कि अब वो कोर्ट वाला सिलसिला नादरा के थ्रू बड़ा स्विफ्ट हो गया है। ये एक हाँ ये जरा मेरे ख्याल में लीगल वाला इशू आ जाता है, लीगल हेयर वाला। कुछ सिचुएशन तो इस तरह की है ना कि जहाँ पर मतलब लॉ में चीज़ें स्टैंड स्टिल हो जाती हैं अगर अंडर द लॉ देखें। जैसे अगर 50-50% है, तो अब एक बंदा सीईओ है, अब सीईओ की रिमूवल 3/4 मेजॉरिटी के साथ हो सकती है, तो वहाँ पर तो आप सीईओ को रिमूव कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो वहाँ आ जाती हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली फिर वो चली जाती हैं डिस्प्यूटेड केसेस में, तो वहाँ पे फिर कोर्ट और बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है ना, इस तरह जो है ना वो इश्यूज नहीं आते। चले let's move to the next question. I have a Obviously. small clarification, need some clarification. As the law prohibits the transfer of shares of private limited company, law prohibits transfer of shares of a private limited company, right? So, as you said, now buyback of the shares of private company is possible, then how that transfer will take place? अच्छा, इसमें इस तरीके से है कि इसके ऊपर अभी रेगुलेशंस भी अंडर प्रोसेस हैं, बन रही हैं इस इशू के ऊपर, बायबैक वाला। अच्छा, कि जब प्राइवेट को अलाउ है या नहीं है। और उसके अंदर जो मेन थीम है, जो एक चीज उसके अंदर जो अभी तक मैं कह सकती हूँ, ये नहीं कह सकती कि फाइनल है, कि प्रोपोर्शनेट ऑफर होगी बायबैक की भी टू ऑल द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ठीक है,
तो माइट भी वो चीज इस तरीके से कवर की जाए, That will be a transfer of shares. that won't be a instrument. transfer of shares, that Through will an be instrument of buyback. transfer of shares. बायबैक है वो वो वसीम साहब। बायबैक होगा, हाँ, यानी कंपनी खरीद लेगी वापस, उसके बदले आपको पैसे देगी और ज्यादा दे सकती है। ऑफ कोर्स कोई प्रीमियम होगा, फिर ही लोग कंपनी को that will be called बायबैक। buyback. So it That will, would be called buyback of share. it will That not won't be be a, transfer of it shares. would not be वो transfer शेयर of किसी shares. और को इशू नहीं हो रहे होंगे, वो शेयर किसी और को इशू नहीं होंगे, वो कंपनी बाय बैक कर लेगी, ठीक है। That will not be called as a transfer That of won't be shares. transfer of shares. That would be buyback. जैसे लिस्टेड में बायबैक होता है, इसी तरह वो सिर्फ फर्क कितना है कि प्राइवेट में बायबैक और उसके डिफरेंट मोड्स रेगुलेशन में प्रोवाइडेड Yeah, होंगे, subject to the regulations. जो भी आ सब्जेक्ट रहे टू हैं जो इस भी वक्त। उसकी रेगुलेशंस फाइनलाइज होंगी कि हाँ। और वो जी, मगर वो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिडक्शन। उसमें फिर ये प्रोविजन होगी कि वो रिडक्शन पे नहीं होगा, और वो जो शेयर होंगे किसी को रीइश्यू भी नहीं हो सकेंगे, होल्ड भी नहीं कर सकेंगे, वो कैंसल होंगे, वो शेयर्स फिर कैंसल ट्रीट होंगे। हाँ, मगर वो फिर वो रिडक्शन थ्रू कोर्ट वाली चीज नहीं होगी, वो फिर ये एक आउटलेट कंपनी को एक मिल जाएगा, दैट वुड इवेंचुअली, मगर वो कोर्ट वाला वो सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो बायबैक होगा। और वो होपफुली मोस्ट प्रोबेबली अब ड्राफ्ट से आगे उसमें क्या प्रोविजंस आती हैं, बट वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे और कोई एक बेहतर बेसिस पे वो बायबैक की ऑफर जाएगी एग्जिस्टिंग को जी, as far as now is concerned, but they are in the process of finalization. पब्लिक कमेंट्स के लिए भी आएंगे ऑफ कोर्स। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी मुझे। जो 25% का शेयर जो थ्रेशोल्ड आपने डिस्कस किया था, मेरी प्रायर अंडरस्टैंडिंग यही थी कि वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए है, लेकिन आपने बताया वो थ्रेशोल्ड कभी भी अचीव हो जाए ड्यूरिंग टू फॉर्म में 2 एनुअल रिटर्न्स के दरमियान, तो आप वो करें। इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए कैसे, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सेम शेयर सर्टिफिकेट्स मल्टीपल टाइम अगर ट्रांसफर हुए हैं तो उसको भी अकाउंट फॉर किया जाएगा उस 25% के थ्रेशोल्ड को? इसमें ऐसी कोई बाइफिकेशन नहीं है कि वो सेम शेयर्स होंगे एडिशनल, बट टोटल थ्रेशोल्ड 25% का अचीव होना चाहिए। कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं, कोई मल्टीपल मेंबर्स अपने एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर लेते हैं या सेम शेयर सर्टिफिकेट्स मल्टीपल टाइम ट्रांसफर होते हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा थ्रेशोल्ड को? फाइल करना चाहिए, उसमें भी फाइल करना चाहिए, अगर 25% बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि यूजुअली एससीसीपी जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये ट्रांजैक्शन जो है जो आप लेकर आए हैं ये 25% के ऊपर नहीं आ रही है। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो क्लब करते हैं ना उसको, जैसे फॉर्म ए में फॉर्म ए के बाद अब फर्ज किया कि अगर आपके 10% हुए एक टाइम पे, 10% दोबारा हुए, आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि वही 10% रिवॉल्व कर रहे हैं। वो भी हो सकते हैं या अदरवाइज कोई और मेंबर है जिससे हमने ट्रांसफर कर दिया, किसी सिंगल मेंबर को किया, किसी और मेंबर को इसमें किया। इस तरह की बाइफिकेशन ही है, जब आपका 25% का थ्रेशोल्ड अचीव हो जाए तो तब आपने फाइल करना है, रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए वो शेयर होल्डिंग कंपनी के जो टोटल पेड अप शेयर्स है ना, वो उसका 25% है, ठीक है, वो उसका 25% है। वो ये नहीं है कि वो एक ही शेयर है और वो आगे पीछे जा रहा है, समझ रहे हैं? That is 25% ऑफ द टोटल जो इशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी है, ठीक है। 100 है तो 25 शेयर्स का जब वो एग्रीगेट टोटल अचीव हो जाएगा, चाहे उसमें एक दफा में 5 शेयर ट्रांसफर हुए, अगली दफा में 10 हुए, वो 25% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी का जब थ्रेशोल्ड अचीव होगा तो तब आपने फाइल करना है। तो उस फॉर्म 3A के लिए फाइलिंग के लिए फिर हमें वो पूरी हिस्ट्री देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी, जिस डेट को आपका वो थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है, मगर हिस्ट्री आफ्टर लास्ट फॉर्म ए, वो एक फॉर्म ए से दूसरे फॉर्म ए के दरमियान का टाइम पीरियड है, ठीक है, वो टाइम पीरियड फिर पीछे तो नहीं जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल। बस 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि लिस्टेड कंपनीज की एक तो अभी तक डिजिटल कॉपीज जो है वो इश्यूज नहीं हो रही, वो कब तक हमें अवेलेबल होंगी लिस्टेड कंपनीज के हवाले से? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर प्राइवेट कंपनी के फॉर एग्जांपल 3 डायरेक्टर्स हैं, और जबकि वैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट लॉ के अंदर है कि 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, अगर कल को कोई जो है डायरेक्टर एक छोड़ जाता है और 2 हमारे पास अवेलेबल हो, तो क्या हमें कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी कि हमने नंबर 1 डिसाइड किया हुआ है कि 3 नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड हैं और अप टू नेक्स्ट टर्म वो ही रहेंगे?
फिल करनी पड़ेगी और उसमें जो है टाइमलाइन भी लॉ में प्रोवाइडेड है कि कितने दिन में फिल करनी पड़ेगी। आई थिंक वो 100 लिस्टेड कंपनी में शायद 90 डेज है और बाकी कंपनीज में टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है। इसमें लिस्टेड कंपनीज में प्रोवाइडेड है मगर 90 डेज। ये लिस्टेड कंपनी की भी डिजिटल सीटीसी इशू हो रही हैं, बल्कि ज़्यादा हो रही हैं काफ़ी का। सिर्फ वो कंपनीज जो इन पे फ्लैग्ड हैं, मसलन वो डिस्प्यूटेड कंपनीज हैं, ठीक है, या उनके केस कोर्ट्स में सब्जुडिस हैं, या एफआईए में पेंडिंग है, या नैब अंडर इंक्वायरी है, उन कंपनीज में जो था ना उसको हमने बात किया हुआ था कि वो डिजिटल सीटीसी। लेकिन अभी भी अगर कोई कंपनीज इस तरह की हैं जो आपकी कंपनी, पता नहीं, आई डोंट नो कि आप किस कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर वो क्लियर है उसमें इस तरह का कोई इशू नहीं है। इवन अगर सेक्शन 19 की इंफॉर्मेशन भी नैब की भी कुछ केसेस इस तरह के हैं जिनको हमने अलाउ कर दिया है, तो इस चीज़ को आप डिस्कस कर लें कि किस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, उसको हम देख लेंगे, क्योंकि इस तरह कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, कोई इस तरह का इशू तो नहीं है। ठीक हो गया, ये फिर मैं लेटर ऑन इसको। हाँ जी। मेरा सवाल था कि अगर न्यू कंपनी बनी है जून में और उसने विद इन 16 मंथ्स वो एजीएम होल्ड कर सकती है, तो फॉर्म ए के हवाले से अगर उसने एजीएम नेक्स्ट ईयर करनी है तो उसको नेक्स्ट ईयर एजीएम के बाद फॉर्म ए फाइल करना होगा या कैलेंडर ईयर के बाद भी करना होगा? जून में कंपनी बनी, ईयर एंड जून है, वो अक्टूबर में नहीं पहली एजीएम करती। देखिए बात यह है कि अगर आप लॉ की बात करेंगे तो कैलेंडर ईयर का भी फाइल करें आप, ठीक है, मगर उस पर हार्ड एंड फास्ट इतना ज़्यादा हम उसको करते नहीं क्योंकि कंपनीज कैलेंडर ईयर का आमतौर पे करती नहीं है। बट अगर आप वैसे देखें तो जब कैलेंडर ईयर एंड हो गया और कोई मीटिंग नहीं हुई, एजीएम नहीं हुई, तो कैलेंडर ईयर का करें। आइडियली स्पीकिंग कैलेंडर ईयर का भी करें, मगर अगर आपका अभी टाइम है मीटिंग होल्ड करने में तो हम आपको खुद से स्पेसिफिकली कहेंगे नहीं कि कैलेंडर ईयर का फाइल करें, और आमतौर पे कंपनीज करती नहीं है, ठीक है, खासतौर पे जब नई बनी होती है और अभी उनका टाइम होता है, हम उनको कहते भी नहीं है। वो तो ज्यादातर वो कंपनीज करती हैं फर्ज क्या कि जिनकी मीटिंग वैसे नहीं हो रही किसी वजह से और वो 1-2 साल तक नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग और ये वो अपडेट दिखाने के लिए दे फाइल कैलेंडर ईयर फॉर्म में ज्यादातर। न्यू कंपनी हम बनाते हैं, फॉर्म 2 वगैरह फाइल करते हैं, उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा होता है, तो उसके बावजूद फॉर्म 21 फाइल करना होगा? नहीं, उसके अंदर नहीं, वो ऐसा नहीं है। अगर तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, मगर अगर फर्ज किया आप कहते हैं कि अभी मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस अपना डिसाइड नहीं किया कि मैंने कौन सा रखना है, तो फिर आप फॉर द टाइम बीइंग एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इस तरह का एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। फर्ज किया अगर आप वो एड्रेस वहाँ प्रोवाइड करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन के अंदर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करके फॉर्म 21 फाइल करना होता है। अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज तब रिक्वायरमेंट है अगर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंज आए तो फिर रिक्वायरमेंट। थैंक यू सर। मेरी एक सजेशन थी, जो सर्टिफाइड कॉपीज पहले अप्लाई करने का तरीका था कि ऑनलाइन और फिजिकली हम रिसीव कर लेते थे, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। फिजिकली अप्लाई वहाँ जा करें और फिर कॉपी भी वहाँ से कलेक्ट करें, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा नहीं हो गया सर? क्या वो ऑनलाइन पे ऑनलाइन ही होगा ना, हाइब्रिड ना करें ना? नहीं, डिजिटल के अलावा अगर हम चाह रहे हैं कॉपी, तो उसके लिए हमें अप्लाई करने के लिए भी ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ सबमिट करनी पड़ती है रिक्वेस्ट। ये क्या रिक्वेस्ट कोरियर कर दें, लेकिन जो चीज़ है और क्या, कॉपी भी अगर आप नहीं आ पाएंगे तो कॉपी भी कोरियर से भेज दें। आप सिर्फ एप्लीकेशन पे लिख दें चलिए ठीक कि है, मुझे कोरियर से चाहिए, मैं नहीं आ सकती। जी थैंक यू। अब ये थोड़ा सा फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया मतलब। कि एक है जेन्युइन क्यूरी उनकी है, इशू तो थोड़ा कम है। डायरेक्शन फॉर एजीएम की रिक्वेस्ट आएंगी आपके पास, वो आ रही है मेरे ख्याल में इस वक्त आपको, इस पर बहुत ज्यादा आएंगी भी अभी, तो उसके लिए क्या प्रोसेसिंग टाइम एक्सपेक्टेड है? कि जिसने एजीएम में बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल करने के बाद, बोर्ड मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि आप एजीएम के लिए डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर दें, तो अप्लाई करने के बाद क्या टाइम प्रोसेस है उसका एक्सपेक्टेड, जो गाइडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपके पास है इस वक्त? तो
एक दो दिन के अंदर ये एप्लीकेशंस वैसे ही हो जाती हैं अनलेस एंड अनटिल कोई डेफिशिएंसी हो या कोई और वजह हो, क्योंकि इसमें कोई इतनी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स तो है नहीं। फर्ज किया कि जो 147 की एप्लीकेशन उनमें ज्यादातर इशू क्यों आता है, तो उसमें एक रिक्वायरमेंट है सेक्शन 147 की कि डायरेक्टर या मेंबर साइन करे, ठीक है। इवन चीफ एग्जीक्यूटिव की साइन भी, बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव से डीम डायरेक्टर हम एक्सेप्ट करते हैं, बट लोग कंपनी सेक्रेटरी से साइन करा के इस तरह की एप्लीकेशंस फाइल हो जाती हैं। उसकी वजह से थोड़ा उसमें डिले आ जाता है। ये कुछ ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन मिसलेनियस में फाइल की है और उसकी फी नहीं या किसी और वजह से वो नहीं हो सकी सिस्टम, उसकी वजह से हो सकता है। अदरवाइज इन एप्लीकेशंस में तो इतना ना एग्जामिनेशन टाइम है ना इतना प्रोसेसिंग टाइम है, तो सिंपल है। मगर इसमें एक चीज ये देख लें कि ये ना हो कि पिछली एजीएम्स होल्ड ना की हों, नहीं वो तो खैर और वो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है, आई हाँ, अंडरस्टैंड। और अगली की डायरेक्शन। ये अब ये जो आपके साथ इस साल यूडीएन की वजह से अब ये एक परमानेंट फीचर बन जाएगा फॉर द टाइम जी बिंग, इस जब तक दफा लॉ बहुत में, ज्यादा, इस दफा इट्स मोर देन यूजुअल, हाँ, काफी ज्यादा जब तक लॉ अमेंड नहीं होता तब तक ये आपके पास एक परमानेंट फीचर ही है। जी वो परमानेंट आ रहे हैं। अच्छा, another question. मेरा ख्याल में ये let's make it last question, उसके बाद when we move to second. जी आपने जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स बताई हैं तो उसमें जो फॉरेन कंपनीज हैं उसके लिए कोई थोड़ी सी एडिशनल होती हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और जो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा मैं बता देता हूँ उसमें। देखिए फॉरेन कंपनी को आपको पता है ना कि बेसिकली फॉरेन कंपनी क्या है, एनी कंपनी विच एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान, ठीक है, चाहे वो इधर लाइसेंस ऑफिस हो या ब्रांच ऑफिस हो, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जी वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं लॉ में, वो प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट थी, वो उसने एसएससीपी के पास जमा करवाने हैं, जिसकी बेस पर, ठीक है, अलॉन्ग विद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल फ्रॉम BOI, कंपनी रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने एनुअल जो है ऑडिटेड जो उसके लोकल अकाउंट्स एज वेल एज ग्लोबल अकाउंट्स, ठीक है, वो आपने लाजमी जमा करवाने हैं। और इसके अलावा अगर उसके जो मेन चीज़ें जो हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफिसर होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लोकल यहाँ पर ब्रांच ऑफिस हो, अगर प्रिंसिपल ऑफिसर में कोई चेंज है या उनका यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस है उसमें अगर कोई चेंज आ रही है, या उनकी डायरेक्टरशिप इन द पेरेंट कंपनी, जो लोकल कंपनी है उसकी जो पेरेंट कंपनी के डायरेक्टरशिप में किसी किस्म की चेंज आ रही है, इस तरह की अगर कोई चेंज हो तो वो फॉर्म अलग से नोटिफाई होती है। उसके अलावा कोई स्पेशल उसकी खास रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उसके लिए ऑडिटर को नोटिफाई करना होता है। आप फॉरेन ये जो है ना फॉरेन कंपनीज की रेगुलेशन देखेंगे तो उसमें कोई फॉर्म आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, बल्कि अब जो मैंने आपको बताया कि अब जो रेगुलेशन मजीद आ रहे हैं इनमें इन तमाम चीज़ों को मजीद सिंप्लीफाई किया जा रहा है। लेकिन जो उनके पाकिस्तान ऑपरेशन है उसके सेपरेटली अकाउंट्स ऑडिट करवा के देने पड़ते हैं। जी ऑडिट अकाउंट्स फाइल होते हैं, उसमें वर्ड जो यूज़ किया है कि सेम इन द मैनर जिस तरह की पाकिस्तान लोकल कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट होंगे सेम पैटर्न पे फॉरेन कंपनी के, और वो विद इन 6 मंथ्स जो है ना वो फाइलिंग टाइम पीरियड उसका ज़्यादा है अलॉन्ग विद ग्लोबल अकाउंट्स। इस तरह जो LLPs भी हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं, वो LLP की रेगुलेशंस है उसके अंदर, और वो भी ब्रीफ ही रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई चेंज की सूरत नहीं है। नाम चेंज किया तो आ गए फॉर्म, कोई पार्टनर जो है वो चेंज हुआ तो फॉर्म आ गए, ठीक है। उसमें भी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स उसकी एनुअल फाइलिंग नहीं, एनुअल रिटर्न वगैरह की। उसकी इस तरह की एनुअल फाइलिंग है। रूल्स का वर्ड यूज किया गया, अगर आप देखेंगे ना अब वो रूल्स पे काम हो रहा है, मतलब 2-3 किस्म की चीज़ें हैं जो अब आप LLP एक्ट में देखें कि फॉरेन LLP है, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, और बाइंडिंग अप फॉर LLP, उसके लिए रूल्स बनने, रेगुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है, अभी रूल्स में थोड़ा टाइम वो, लेकिन वो अंडर प्रोसेस है, काम शुरू हो गया। We'll take just last question, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, एक मिनट माइक आ जाता। UDIN की वजह से ना काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जिनका 10 मिलियन से कम का कैपिटल है, उन पे एक क्विक आप गाइडलाइन हमें दे दें कि आज अगर ऑडिटर रिपोर्ट इशू होनी है तो वो क्या करें। AGM पुरानी डेट में कर लें, यूअली प्राइवेट कंपनीज में तो AGM एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, बस इस पे क्विक गाइडेंस चाहिए हमें अब क्या करना चाहिए।
है कि हाँ, ये और एक चीज आप ये देखें कि वो एजीएम जो लॉ में है वो तो एजीएम है, जिस कंपनी ने करनी है उसने तो करनी है, तो वो फॉर्मेलिटी है ये नहीं है, प्रैक्टिकली वो क्या है लॉ में, तो फॉर्मल इनफॉर्मल इसमें कुछ नहीं है। एक्सटेंशन या 147 डायरेक्शन अकाउंट से नहीं, बेस बिल्कुल 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 मेन एजेंडा है। हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अकाउंट्स ऑडिट के बगैर एजीएम करके आप क्या करेंगे? ये तो फिक्स कुछ एजेंडा होते हैं, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ये वो और डिविडेंड और ये कुछ चीजें लाजमी है। डायरेक्शन के लिए फॉर्म नहीं है, डायरेक्शन के लिए एप्लीकेशन है, सेक्शन है कंपनीज एक्ट का 147 और जो है उस पे आप एप्लीकेशन बस दे के बेसिक रीजंस वगैरह बताने होते हैं, हम क्यों नहीं होल्ड कर सके, वजह क्या थी और अब हम कब तक होल्ड कर सकेंगे, किस डेट तक, और एफिडेविट वगैरह होता है साथ, और फी है लॉ में प्रिस्क्राइब। 30 डेज के लिए एक्सटेंशन है सर। डायरेक्शन का ये है कि कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी कहती है मैं 30 डेज में कर सकती हूँ एंड दैट इज आफ्टर 30 डेज एक्सटेंशन। एक जी रजिस्ट्रार के पास है, डेलीगेट होगी है सीआरओ लेवल पे भी, और जो सीआरओ है वहां से ही आपको एक्सटेंशन और डायरेक्शन मिल जाएगी। जी मेरा ख्याल में थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। काफ़ी सारे हमने उल्टे सीधे सवाल कर लिए। अच्छा, एक मुझे जो समझ आई है वो मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा मसला जो सबका है वो बैंकों के साथ ही आ रहा है, तो वो एक रिक्वेस्ट ये कि आइदर बैंकों के साथ कोई सेशन कर लें। वो मेरा ख्याल में आपका पहले ही एससीसीपी करता है, हेड ऑफिस आपका थ्रू स्टेट बैंक। सो बाकी हमें भी थोड़ा सा इसको रिविजिट करना है अपनी अप्रोच को। जो बैंक कह रहा है मान नहीं लेना, लेट्स ट्राई एंड अच्छा जी जी नुमान, मेरा ख्याल में उसमें बैंक टू बैंक भी वेरी करता है, और वो बात वो है कि वो जो ब्रांच मैनेजर या जो भी है ऑपरेशन मैनेजर, उसने जिससे चार्ज लिया उसने जो कहा उसने वही करना। चेकलिस्ट पुरानी वो मेरे ख्याल में बैंक सब बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं, लेकिन वो आदतन मांगते हैं। जो एसबीपी को ने इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं, अगर वो प्लेस कर दें हम अपनी वेबसाइट पे या शेयर भी कर लें अगर पॉसिबल हुआ आईकैप के साथ भी और सब, तो वो फिर मेरे ख्याल में इजी हो जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा कि वहां से डाउनलोड करें और दिखा दें जाके। जब वो देखेगा कि एसबीपी ने ये इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं तो वो सोचेंगे तो सही ना, पढ़ेंगे तो सही, उसको डिस्कस तो करेंगे ना, सीधा इनकार तो नहीं फिर कर सकते। जी कोई मसला नहीं, वो एक्सपेक्टेड था, इसलिए खैर एनीवे इट्स गुड क्योंकि एक वो अपॉर्चुनिटी मिलती है सब मेंबर्स को टू डिस्कस देयर इश्यूज, एंड इट्स गुड ऑफ देम कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस का बड़ा पेशेंटली आंसर किया। Now I would like to invite Hassan Zaidi Saab ji. He's additional joint registrar with the Company Registration Office, Lahore. He's been with the SCCP since 2004. He's a law graduate and an ACC as well. He'd be talking to us on exit modes of companies during this session. So, Zaidi Saab, please. My presentation will be focusing on winding up of the companies with special emphasis to the easy exit regulations. तो और ये मैं चाहूँगा कि इंटरैक्टिव सेशन हो, आप लोगों के कमेंट्स हो, आप लोगों के क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप उसको वहीं पे ही आप बीच में पॉपअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। वी हैव द इजी एग्जिट ऑप्शन, वी हैव द वाइंडिंग अप ऑप्शन, स्ट्रक ऑफ बाय द रजिस्ट्रार एंड इनएक्टिव स्टेटस। थोड़ा डिफरेंस है सब में, इनको आगे चलते हैं तो मैं फिर आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कुड आइदर बी थ्रू एप्लीकेशन टू द कोर्ट, जो कि हो सकती है 286 सेक्शन के थ्रू, या बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 293, जिसमें कि वॉलंटरी भी हो सकती है और सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट भी हो सकती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि 286 में और 293 में 286 स्पेसिफिकली पर्टेन कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन को,
जहाँ पे कोर्ट्स ये समझती हैं कि देयर हैज़ बीन अ प्रिवेंशन, देयर हैज़ बीन एन ऑपरेशन फ्रॉम सम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो उसमें बेस्ट आपके पास ऑप्शन 286 की अवेलेबल है, क्योंकि जो आपका थ्रेश होल्ड है टू अप्लाई फॉर अंडर सेक्शन 286 वो 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग है। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 347। अच्छा, जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है इट कुड आइदर बी थ्रू द कोर्ट और यू कुड फाइल दीज डॉक्यूमेंट्स विद SECP। दोनों में प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, और हम रेफर करते हैं कंपनीज कोर्ट रूल्स को फॉर आवर फॉर्म्स। 347 का प्रोसेस फेयरली इलेबोरेट है, जिसके अंदर सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होगा कि कंपनी लिक्विड है और वो समझ रहे हैं कि 1 साल के अंदर अपनी लाइबिलिटीज वो पे ऑफ कर सकेंगे। देन देयर विल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर है, उनकी नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वो लिक्विडेटर खुद लेंगे जब वो कंपनी का चार्ज ले लेंगे। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स होगी जो कि लिक्विडेटर करेंगे। लिक्विडेटर शेयर होल्डर्स को एसेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कैश भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो सेल कर सकते हैं एसेट्स को, जो कैश आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अल्टरनेटिवली राइट अवे एसेट्स भी जा रहे होते हैं शेयर होल्डर्स के पास, बोथ मोड आर एक्सेप्टेबल। अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप और ऑडिटेड रिपोर्ट जो होगी वो आपने फाइनल अकाउंट्स के साथ हमारे पास फाइल करनी है और फाइनल मीटिंग आपने कंक्लूड करनी है। तो बेसिकली यही स्टेप हैं जो कि कोर्ट में भी फॉलो हो रहे होंगे और SECP के पास अगर आप फाइलिंग करें तो यहाँ पे भी होंगे। सर नहीं, इनकम टैक्स अथॉरिटी से इस स्टेज पे नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने FBR से भी डिस्कस की थी, मगर दैट वुड हैव बिकम वेरी कम्बरसम कि हम उनको कहें कि आप हमें बताएं कि इस स्टेज पे उनकी क्या लायबिलिटी है। होता ये है कि वंस यू गेट दिस फाइनल फाइलिंग सर्टिफिकेट फॉर फाइलिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, यू टेक इट टू FBR देन, और वो फिर हम वो वहाँ पे आपको NTN आपका कैंसिल कर देते हैं। मगर इससे पहले इफ़ देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन, और वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि FBR में आपकी कंपनी के अगेंस्ट चल रही है, जिसके लिए हमें बताया गया है, तो फिर वी आस्क यू टू गेट इट क्लैरिफाइड बाय FBR। मगर अदरवाइज इफ इट इज़ अ सिंपल रिक्वायरमेंट 172 में जैसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें वी डोंट रिक्वायर यू कि आप उनसे क्लियरेंस लेकर आए पहले। नहीं, एग्जैक्टली वॉलंटरी, हाँ, कि कोई भी एनी कंपनी कुड ऑप्ट फॉर दिस प्रोसेस आइदर थ्रू द कोर्ट और थ्रू SECP। लेकिन ये प्रोसेस कम्बरसम है और गोइंग टू द कोर्ट मींस फाइनेंशियल आउटले एज वेल, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है कंपनीज के लिए, अंडरस्टैंडेबली। इवन इफ कंपनी के 0 एसेट्स हो। देयर वाज अ केस इन हाई कोर्ट कि जिसमें वो एक बैंक की सब्सिडरी थी और उनके कोई एसेट्स नहीं थे, और वो बैंकर्स एडमेंट थे कि आप इनका फाइनल आप डिसोल्यूशन ऑर्डर कर दें, मगर कोर्ट ने नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि आप प्रोसेस को कंप्लाई करिए पहले। अग्रीड, इतनी जल्दी वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंक्लूड नहीं होती, पहली बात, उसमें टाइम लगता है। वो चलते हैं, मगर अगर इस तरह के अगर केसेस हों तो अक्सर FBR हमें ऑन बोर्ड लिया होता है, और वो सारे केसेस की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो फाइल में लगी हुई होती है हमारे पास। ये FBR बेशुमार केसेस ऐसे हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप के, जिसमें मैंने खुद उन्हें कहा कि आप FBR से क्लियरेंस लेकर आए, वो नहीं ला सके। तो वो ऐसा नहीं होता कि वो आइसोलेशन में चल रहा है। अगर वो मेजर केस है और अगर वाकई पेनल्टी है या इस तरह की चीज़ है, तो वो फिर नहीं होगा। अगर कंपनी का क्लेम है, ऑफ कोर्स वो हमारे पास आएंगे ही नहीं, वो आएंगे अपना क्लेम जब वो हासिल कर लेंगे उसके बाद। सर FBR से क्लैरिफिकेशन उस स्टेज पे होगी इफ देयर इज एन इंक्वायरी गोइंग ऑन एट FBR और उन्होंने हमें इंटीमेट किया हुआ हो उस बारे में। अच्छा, आई गेट योर पॉइंट। नहीं, वी एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स वंस दे हैव बीन सबमिटेड विद अस कंप्लीटली, क्योंकि वो मैच नहीं हो सकती चीज़ें। ये आइसोलेशन में तो फॉर्म्स आप सबमिट कर दें, मगर हमने इसको मैच करना है आपके एसेट्स के साथ और लाइबिलिटीज़ के साथ और द वे दे हैव बीन डिसबर्स्ड, तो वो अलहदा नहीं हो सकता। वो जब तक फाइनल नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, तो उसके बाद ही फिर FBR
के पास जाता है, मगर यूजुअली अगर इतना बहुत स्ट्रॉन्ग बास केसेस होते हैं जिसमें ग्लेयरिंग किस्म की मिस्टेक्स हैं या ग्लेयरिंग किस्म के एफबीआर की इन्वेस्टिगेशन है, वो हम उससे पहले ही कर लेते हैं। वो कंपनी की ऑप्शन है क्योंकि वो हमारा मैंडेट नहीं है। They would only deregister you from sales tax and NTN once you have this dissolution certificate. वो उससे पहले नहीं करेंगे सर। जी जी। हाउ का तो प्रोसेस गिवन है ना। नहीं, वो इलेबोरेट सेक्शंस हैं, पूरे सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में। अगर आप देखें तो सेक्शन 347 ऑनवर्ड सारे सेक्शंस हैं। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्लस कंपनीज कोर्ट रूल्स हैं, उसके फॉर्म्स हैं, और वो बहुत एलेबोरेटिव फॉर्म्स हैं कि वो अलग अलग आ रहे हैं। कोर्ट रूल्स में फॉर्म्स जो हैं उसमें एवरी क्लास ऑफ एसेट्स अलग अलग बताए हुए हैं। तो आप, वो बहुत अच्छी चेकलिस्ट है, इसकी वजह से चेकलिस्ट हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो वो वहाँ से उसमें। अच्छा, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज वेरी सिमिलर टू मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और ये सिर्फ प्रोविजन उस वक्त इन्वोक होगी व्हेन यू आर हाफ वे इनटू द लिक्विडेशन एंड द लिक्विडेटर थिंक्स के द कंपनी विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स लायबिलिटीज। तो इसलिए वो फिर दे वुड आस्क द क्रेडिटर्स टू कम इन, और वो क्रेडिटर से कहेंगे कि अब यू टेक ओवर the liquidation process. The liquidator may or may not remain the same. The creditors may bring in their own liquidator, और फिर वही प्रोसेस वाइंडिंग अप का आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत बहुत कम ये होते, मैंने अभी तक एक सिर्फ क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप देखी है जो कि कंक्लूड नहीं हो सकी थी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ डिस्प्यूट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द शेयर होल्डर्स। इन दिस केस क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप जाती हैं ज़्यादातर कोर्ट में। अगर आपके क्रेडिटर्स समझ रहे हैं कि वो वाइंड अप करवाएं कंपनी को, तो वो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड बहुत कम है, विच इज़ 100,000 रुपीज़। कि अगर किसी भी क्रेडिटर का 100,000 रुपीज़ का क्लेम नहीं कोई कंपनी दे पा रही है, तो दे कैन फाइल अ वाइंडिंग अप पिटिशन। ऑब्वियसली कोर्ट उसको देखती है, वो अक्सर वो डिस्पोज ऑफ भी हो जाती हैं या वो नहीं आगे चल सकती, मगर उनके पास एक ऑप्शन, एक एवेन्यू अवेलेबल है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय कोर्ट, ये बिल्कुल वही सिमिलर चीज़ें हैं। प्रोसेस विल बी द सेम जैसे कि मैंने बताया था वॉलंटरी वाइंडिंग अप में था, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें अंडर सेक्शन 301 अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। इलेबोरेट चीज़ें हैं, कंपनी खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग और सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, if there is a default in holding 2 consecutive annual general meetings, number of members is reduced, जो आप सर बात कर रहे थे कि number of members is reduced, one of the members passes away, तो उसमें ये option है actually, which is very cumbersome for the companies कि अगर उनका एक साहब नहीं रहे 2 में से, तो वो फिर कोर्ट के थ्रू जाएंगे। Companies unable to pay its debts, any of the creditors कर सकते हैं। Company ceases to remain listed, listed company unlisted हो जाती है। License inquiry, licensed company अगर है और वो sole license, जैसे कि स्टॉक ब्रोकरेज हाउस है, sole reason for existence उनका वही लाइसेंस है, लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो कोर्ट के थ्रू उसमें ऑप्शन अवेलेबल है। या अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट प्रोहिबिटेड बिजनेस वगैरह में जा रहे हैं। अच्छा, who will be filing, who will be initiating the winding up process? It could be the company through the special resolution. It could be the registrar, SECP, on any of the grounds के number of members कम हो गए, unable to pay its debts, या the company ceases to remain listed, या ये मतलब ये 2 ऑप्शंस होंगी जो कि, हाँ वो तो पहली ऑप्शन होगी ना, सबसे पहले आ गया स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ, SECP can take action against the registrar, registrar की पावर है ना उसमें, मतलब there are various grounds available to a registrar on which he could file a winding up petition, और उसमें एक ये भी है कि non holding of 2 consecutive annual general meetings। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत, मतलब हमारी बहुत सी कंपनीज होंगी जो कि इसमें आ रही होंगी, मगर उसका एक बहुत फेयर
लंबा प्रोसेस है। 301 के बाद फिर हम 305 में जाएंगे, कमीशन की पहले अप्रूवल लेंगे, फिर उसके बाद हम पिटिशन फाइल करेंगे, जिसमें कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग है कंपनी के लिए। तो वो बहुत सिर्फ जो कंपनीज जो वाकई क्वालिफाई कर रही हैं कोर्ट के थ्रू वाइंड अप होने में, वो जाती हैं। यूजुअली दे आर कंपनीज जिनमें डिस्प्यूट्स हों, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस चल रही हों, जिसके अंदर हाइनेस किस्म के ऐसे प्रॉब्लम्स हों कि जो कि हम नहीं उसके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते, तो वी मूव टू द कोर्ट। कोर्ट्स करते ही हैं कि वो क्लब कर देते हैं आपकी जितनी अगर और भी पिटिशंस चल रही हैं वहाँ पे, तो सबको क्लब कर देते हैं, फिर वो जॉइंट हियरिंग्स के थ्रू करते जाते हैं। SECP, द रजिस्ट्रार। हाँ, नहीं, that is an option available to the registrar, that is not mandatory on the registrar. कई कंपनीज ऐसी हैं, केसेस मैंने देखे कि जिसमें डीलिस्ट हुई कंपनीज, उसके बाद दे केम अप विद अ बिजनेस प्लान और उन्होंने अपना मतलब मेन ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, तो कमीशन ने अलाउ कर लिया, क्योंकि इस 301 के बाद आप फिर जाएंगे कमीशन की अप्रूवल के लिए। द रजिस्ट्रार विल टेक दिस टू द कमीशन। वहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है कंपनी के लिए, तो इफ दे कम अप विद द बिजनेस प्लान, वो वहाँ पे भी हो जाता है। इवन इफ यू गो टू द कोर्ट, कोर्ट ने भी रेफर किया हमारे पास कि हम वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल की, कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप एक दफ़ा दोबारा इनको चांस दें, वो हमें रेफर बैक कर दिया जैसे केस को, तो उसमें फिर एड्रेस हो गई चीज़। अच्छा, इंपॉर्टेंट मैटर्स जो कि इसमें कंसिडर होने चाहिए, पैनल ऑफ लिक्विडेटर्स, प्रोविजनल मैनेजर्स। पैनल ऑफ लिक्विडेटर्स, जैसे सर ने बात की, जो वाइंडिंग अप थ्रू कोर्ट है उसमें SECP हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ पैनल ऑफ लिक्विडेटर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। लेकिन हमारी कोर्ट्स अगर किसी को लिक्विडेटर अपॉइंट कर रही हैं तो वो लोग भी अभी चल रहे हैं। तो ऑफिशियली द वर्ड इज़ कि हाँ, हमने एक पैनल ऑफ लिक्विडेटर बताया है, एंड द कोर्ट्स आर बाउंड टू अपॉइंट एनी लिक्विडेटर थ्रू दैट पैनल। लेकिन कोर्ट्स उसके अलावा भी कर देती हैं। सॉरी, दैट कैन बी चैलेंज, बट हु इज गोइंग टू चैलेंज इट? मतलब यू हैव अ पॉइंट के मगर उसमें फिर वो ग्राउंड्स ले आते हैं ना कि आप देखें, इफ द कोर्ट इज ऑफ द व्यू कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस दिस एंड दिस पर्सन इज मोस्ट क्वालिफाइड और एलिजिबल टू एक्ट एज, यू हैव अ पॉइंट, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, उसमें गलत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। हाँ, वैलिड। अच्छा, चेंज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। वंस अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, बोर्ड की पावर सीज हो जाती है और सारी लिक्विडेटर के पास चली जाएंगी। प्रूफ एंड रैंकिंग ऑफ क्लेम्स, जैसे आपने कहा वो कैसे करेंगे, तो इलेबोरेट सेक्शंस हैं जिसके ऊपर पूरे हमारी रैंकिंग ऑफ क्लेम्स आ रही है कि किस किस तरीके से क्लेम्स रैंक करेंगे और कितना कितना मुख्तलिफ लोगों को मिल जाए। मुझे एक बहुत अच्छी एग्जांपल, एक I think he was a British person, उन्होंने दी कि it's like a tree, one jar fills in और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जार आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जार है, फिर नेक्स्ट जार है। मुझे बड़ी उनकी एनालॉजी बड़ी अच्छी लगी कि वो जो रैंकिंग ऑफ क्लेम्स है वो इस तरह से होगा कि until your first claim gets satisfied you don't move to the next level। तो उसको उन्होंने कहा था जार प्रिंसिपल, तो मुझे मतलब इंटरेस्टिंग बड़ी चीज़ लगी थी। वाइंडिंग अप ऑर्डर एंड डिसोल्यूशन ऑर्डर। वाइंडिंग अप ऑर्डर इज द ऑर्डर, जब आप कोर्ट के पास पिटिशन लेके जाएंगे फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो जो ऑर्डर अगर कोर्ट थिंक्स कि दिस कंपनी हैज टू बी वाउंड अप, वो वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देंगे एंड दे विल अपॉइंट अ लिक्विडेटर, और द लिक्विडेटर विल प्रोसीड विद वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वंस द लिक्विडेटर इज डन विद हिज बिजनेस, ही submits his report with the court will then pass a dissolution order which will be a final order for final dissolution of the company। ये वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन की एक एनालॉजी मैंने, एक इंडियन थे, उन्होंने वीडियो थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि वाइंडिंग अप इज लाइक डेथ ऑफ द कंपनी और डिसोल्यूशन इज लाइक बर्निंग द कॉर्प्स। तो इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ लगी उसमें। अच्छा, स्ट्राइकिंग ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार। सेक्शन 425 इज द सेक्शन which empowers the registrar to strike off a company provided he has a reasonable cause to believe that the company is not carrying on business and is not in operations। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल फैक्टर है वो फॉर्म्स की नॉन सबमिशन नहीं है,
बिकॉज सिर्फ फॉर्म्स सबमिट ना करा के हम ये नहीं कह सकते द कंपनी डज नॉट operate, that may lead to an assumption that the company is not in operations, or only then this section 425 will be invoked by the registrar. 3 notices हैं जो कि हम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे भेजते हैं थ्रू पोस्ट, और उसके बाद हम सेक्शन 425(3) में गैजेट नोटिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट गैजेट नोटिफिकेशन के 3 months बाद सेकंड नोटिफिकेशन है, और उसके बाद कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी. कंपनी में ऑल्सो बी रेस्टोर्ड अंडर सेक्शन 425 सबसेक्शन 9. सर एग्जैक्टली हाँ, आई अंडरस्टैंड. उसमें जो हमारा बेसिक यार्डस्टिक है वो ये है कि company is not submitting its form. If a company is not submitting its form for a period of say 4 years, 5 years, there is a reasonable cause to believe. The company does not have any assets जिसमें कि आपका चार्ज नहीं है, कोई आपका mortgage चार्ज नहीं है, इसका मतलब you do not have any assets. We do not get any request for a certified copy of that company, which means that probably they are not in operations because they don't, that is why they are not obtaining a certified copy. The company has not had any inspections. आपने कोई inspection करने नहीं आए, वो पूरा criteria check करते हैं. The company, although this is not a requirement, but this is a guideline कि the company is not in manufacturing business. Usually manufacturing business में जो होंगी उनका probably there is an assumption कि शायद उनका कुछ setup होगा, assets होंगे उनके. तो वो पूरा क्राइटेरिया होगा elaborate, जिसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, और वो it is not in thin air, और वो डिस्क्रेशनरी नहीं है रजिस्ट्रार के लिए, क्योंकि यही चीज़ एक दफ़ा हमारे विफाकी मुतसिब के पास भी चैलेंज हुई थी. देयर वाज अ कंपनी जो कि एडमेंट थे कि उनको रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ कर दे, तो उन्होंने भी हमारे जो आर्ग्यूमेंट थे उनको अपहोल्ड किया कि वो डिस्क्रेशन नहीं हो सकती, इनका क्राइटेरिया है जिसके ऊपर अगर कोई कंपनी आ रही है तो फिर वी ओनली प्रोसीड फॉर अंडर सेक्शन 425. सर ठीक है. नहीं, उसमें कोई यार्डस्टिक नहीं हो सकती, क्योंकि हम कॉर्पोरेट रेगुलेटर, हम बिजनेस के रेगुलेटर नहीं है ना, हम उसकी एंटिटी को रेगुलेट करें, और कॉर्पोरेट कंप्लायंस कंप्लीट है आपकी कंपनी की. तो इसीलिए उसने कहा है कि when the registrar has reasonable grounds to believe that the company is not in operations, तो the grounds to be believed exactly, तो reasonable ground हो ना सर, उसकी reasonable ground होगी तो फिर ही हम उसको आगे proceed कर सकते हैं ना, unreasonable ground पर नहीं हो सकता. क्या this is a ground, but how do we know कि they are not in operations? तो वो उसी से पता चलेगा ना, जब आप कॉपी नहीं ले रहे, जब आप उसके फॉर्म्स मॉर्गेज चार्ज नहीं क्रिएट कर, फिर वो कंपनी नहीं बंद होगी, फिर बाय रजिस्ट्रार नहीं बंद होगी. आपकी फाइलिंग कंप्लीट है, एग्रीड, दैट कंपनी विल नॉट क्वालिफाई अंडर सेक्शन 425. नहीं, वो क्वालिफाई नहीं करेगी ना फिर उसमें. वो कंपनी खुद अप्लाई कर देना, अगर वो खुद आगे करना चाह रहे हैं तो डिस्कस ठीक है. करेंगे. वो देयर इज आल्सो एन ऑप्शन, कंपनी हैज अ चॉइस. नहीं, कंपनी हैज अ चॉइस, कंपनी कैन अप्लाई. अगर कोई एसेट्स, कोई लायबिलिटीज, कोई ऑपरेशन उसका नहीं है तो कंपनी हैज अ चॉइस टू अप्लाई इटसेल्फ. वो सेक्शन हसन कवर करेंगे आगे. Well, it rests with the registrar, but subject to certain clippings. ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रेशन है उनकी, मैं आज इतनी कंपनीज बंद कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता. और यूजुअली हमारा प्रोसेस ये है कि सिमिलैरिटी मेंटेन करने के लिए हेड ऑफिस अक्रॉस पाकिस्तान सिमिलर गाइडलाइंस इशू करते हैं कि इस पीरियड में आप देखिए इस क्राइटेरिया पे कितनी कंपनीज आ रही हैं, फिर उनको स्ट्राइकिंग ऑफ की तरफ लेकर जाएं. और वो पूरी चेकलिस्ट है कि अगर वो 20, अगर वो उन्होंने मार्क्स बताए तो 20 चीज क्वालिफाई कर रही है तो फिर ओनली वी विल प्रोसीड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी, अदरवाइज हम पूरा उसको चेक करेंगे. मतलब वो डिस्क्रेशन उस तरह से नहीं हो सकती कि मैं अपनी विल से कर दूं. हाँ, ये मेरा पॉइंट था. अच्छा,
अब सर अब आ जाते हैं आपके दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि था सेक्शन 426 कि अगर कंपनी खुद से कहे कि मुझे आप बंद कर दें, तो उसमें हमारा एक इजी एग्जिट रेगुलेशंस हैं अभी। और इजी एग्जिट रेगुलेशंस पहले ऑफलाइन आप सिर्फ अप्लाई करते थे, अब वो ऑप्शन भी ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है और दोनों मोड से कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। इजी एग्जिट रेगुलेशंस हमारे एक्ट में कवर हो रहे हैं सेक्शन 426 में। तो 425 इज जहां पे रजिस्ट्रार ऑन इट्स ओन करेगा, 426 इज व्हेन द कंपनी अप्लाइज फॉर गेटिंग इटसेल्फ स्ट्रक ऑफ। सॉरी, वो उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि इजी एग्जिट में जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ कि सारे फॉर्म्स आपने इकट्ठे देने हैं और वो आपके जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। और इजी एग्जिट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर कंपनीज दैट डू नॉट हैव एनी एसेट्स और लायबिलिटीज। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज फॉर द कंपनीज जिनके एसेट्स मौजूद हैं। सर देखिए, अगर इजी, ठीक है, नहीं, इजी एग्जिट में ऑन इट्स ओन एनटीएन खत्म नहीं हो सकता, आपको एफबीआर के पास जाना होगा, क्योंकि दे माइट हैव सर्टेन लायबिलिटीज अगेंस्ट द कंपनी, तो वो फिर उसको खुद कैंसिल करेंगे। जो पहली वाली आपकी बात थी कि क्या कहा था आपने, दो क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, स्ट्राइकिंग ऑफ होने के बाद, इफ इट परटेन्स टू अ पीरियड इन विच द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, से आप आज 2022 में कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा रहे हैं, बट योर लायबिलिटी परटेन्स टू द ईयर 2020, तो उस वक्त का कॉर्पोरेट रिकॉर्ड तो मौजूद है ना सारा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड तो हम उनको दे सकते हैं, एसईसीपी दे या आप दे सकते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। सेकेंडली, कंपनी जो कि स्ट्राइक ऑफ हो रही है, दैट कैन ऑल्सो बी रेस्टोर्ड बाय एसईसीपी एंड बाय द कंपनी इटसेल्फ एज वेल, सेक्शन 425 सब सेक्शन 9 में। तो अगर वो कोई ऐसी लाइबिलिटी है या ऐसा एसेट है जो कि दैट कैन नॉट बी यूज्ड until and unless the company is restored, तो वो रेस्टोरेशन ऑर्डर भी पास हो जाएगा और आप कंपनी रेस्टोर कभी भी करवा सकते हैं उसमें। हाँ, क्योंकि फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम जब तो कंपनी इनकॉर्पोरेट थी ना। अच्छा, अगर आप आना चाह रहे हैं इजी एग्जिट में सेक्शन 426, तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली देने होंगे। पहला आपका कवर लेटर है, देन देयर इज द मेंबर्स रेजोल्यूशन जो कि सारे शेयर होल्डर्स की तरफ से हो जाएगा। उसके बाद है डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स, ये 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स की तरफ से होगी ऑन अ स्टैम्प पेपर। और ऑडिटर सर्टिफिकेट, ऑडिटर सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट है, ही माइट नॉट बी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एनी पर्सन eligible to act as auditor of the company can issue this certificate. Basically वो ये certify कर रहे हैं कि the company does not have any assets and liabilities and that is why it qualifies for easy exit. इसमें क्या ट्रिक है? वो इंश्योर करते हैं अपने, ऑब्वियसली वो प्रोसेस लेकर आते हैं, बट वी हैव मेड दिस प्रपोजल इन द अपकमिंग रेगुलेशंस कि इस चीज़ को कुछ रिलैक्स किया जाए और कुछ इसके बारे में किया जाए। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हाँ, हम हाँ। ये कह रहे हैं, इसलिए हम ये सजेशन दे रहे हैं, अभी ये इनकॉर्पोरेट तो नहीं हुई, कि जिन कंपनीज ने एटलीस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना, उनकी ये रिक्वायरमेंट अगर रिलैक्स हो सके तो, और जिनके पहले से स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंटेड हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके पास तो इंफॉर्मेशन फिर आ सकती है। दो डिफरेंट चीजें, एक ये है कि जिन पे लॉ में रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपॉइंट करने की, जी, जिनमें लॉ में रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपॉइंट करने की, उनके लिए जी जी जी, ये दिस माइट बी वन ऑफ द सजेशंस एज वेल। ये हम नोट कर लेते हैं कि ऑडिटर की बजाय उसको रिप्लेस कर दें चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ये सजेशन हम बिल्कुल ये
अच्छा, फर्म ऑफ चार्टर्ड इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होगा। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात एग्जैक्टली बिल्कुल। तो दैट इज अ गुड सजेशन कि इट्स जस्ट अ सजेशन एट दिस स्टेज। वो तो फिर ये है कि वो जिन कंपनीज का कैपिटल कम होगा उनमें फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आ जाएगा, अगर उसके साथ नहीं, फॉर दोज कंपनीज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिटर्स अंडर द लॉ, जो छोटी कंपनीज है जिनका 1 मिलियन तक है पेड अप कैपिटल, हाँ वो अभी खत्म हो जाएगा ये तो पता नहीं है, बट वी हैव मेड दिस सजेशन कि उनके लिए इट्स ज्यादा, और फिर उसमें इनकी बात बड़ी रेलेवेंट हो जाती है कि फिर वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए ना कि ऑडिटर। तो बेचारे को ऑडिटर है ही नहीं, तो वो कहाँ से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, बिल्कुल हमने प्रपोज जी, बिल्कुल वहां पे ऑडिटर शुड कम इनटू इट, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि रिक्वायर्ड है बट उसने अपॉइंट ही ना किया, तो फिर वहां पे फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम्स रेलेवेंट। वो फिर एक बहुत लंबा वो फिर प्रोसेस एक बन डिफरेंट जाएगा। प्रोसेस है, वो फिर एक सर वो तो कमीशन फिर वायलेशन होगी, बिल्कुल वो फिर एक प्रोसीजर फिर वो लंबा हो वाइंड अप होना जाएगा, बहुत फिर मुश्किल हो कमीशन जाएगा। अप्रूव करेगा किसको अपॉइंट करना है। उसमें ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सर, उसमें कहीं पे भी इजी एग्जिट रेगुलेशन में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कंपनीज एक्ट में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, मगर वी अंडरस्टैंड कि इट इज़ कम्बरसम फॉर अ कंपनी कि आप उसका रिकॉर्ड अपडेट करवाएं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इट स्ट्रक ऑफ। तो व्हाट वी डू इज कि इफ द शेयर होल्डिंग एंड डायरेक्टरशिप पोजीशन इज द सेम as reported in the last form, it could be like 10 years ago, so we accept the documents. But if there is a change, so you have to comply with the change requirements. Sir. नहीं, members मेंबर्स रेजोल्यूशन तो आएगा ना शेयर होल्डर्स की तरफ से, नहीं मतलब मेंबर्स रेजोल्यूशन डायरेक्टर की तरफ से नहीं, वो डेक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर है जो आप कह रहे हैं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन वो बोर्ड मेंबर के तौर पे काम करेगी ना, नॉट एज अ मेंबर शेयर होल्डर। वो जो शेयर होल्डिंग जिनके पास ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होल्डिंग हुई है, द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड या वट एवर एग्जैक्टली, तो हाँ 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 किसी ही कह रहे हैं ऐसे है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वो फिर वाइंडिंग अप थ्रू कोर्ट ऑप्शन बच जाती है व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो द प्रिस्क्राइब्ड मेंबर व्हिच इज वेरी कम्बरसम। हाँ सर जी, मगर हम आपसे बैलेंस शीट नहीं मांग रहे। हाँ आइडियली उस पर जाना चाहिए। जी जी ऐसे है, ये एक उसकी इंटेंट है पीछे, हाँ उसकी रीजन है, नहीं हो सकते।
हाँ, मगर सर ये तो जो इजी एग्जिट है, हाँ आइडियली स्पीकिंग उस तरह से नहीं हो सकता, मगर ये एप्लीकेबल ही उन कंपनीज के लिए है जिनका कैपिटल बहुत थोड़ा है, 10,000 रुपीज पेड अप शेयर कैपिटल। अब इट्स अ शेल जो कि आपके पास सिर्फ मौजूद है और आपने यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। अगर आप उसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जाते हैं तो वो उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो जाएगी। और जो अगर आप टोटल स्टेटिस्टिक्स देखें तो अबाउट 97% कंपनी जो SCCP ने वाइंड अप की हैं वो इजी एग्जिट के थ्रू हुई हुई है, स्ट्रक ऑफ हुई हुई है वो सारी। हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। और फिर अगर आप देखें जो थोड़ा सा इससे आगे है कि जहाँ पे सेक्शन 42 की एसोसिएशंस हैं उनका जब लाइसेंस हम रिवोक करते हैं या वो खुद रिवोक करवाते हैं तो सेक्शन 43 ऐड किया गया है। स्पेसिफिकली स्टेट्स के कंपनीज इजी एग्जिट में जा सकती हैं एसोसिएशंस, प्रोवाइडेड वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ करें, बट दे कैन कीप असाइड सर्टेन अमाउंट फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड इजी एग्जिट। तो वो उसको कंसिडर कर रहे हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इसीलिए आपसे बैलेंस शीट नहीं ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो फिर क्वालिफाई नहीं करेंगे उसमें। सॉरी, आइडियली ये वही कंपनीज होती हैं जिनके पास सिर्फ कैश और इतना कैश हो कि जस्ट सफिशिएंट टू मीट योर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, इजी एग्जिट एक्सपेंसेस। वो 2 नोटिफिकेशंस हैं तो इसलिए उसमें सफिशिएंट टाइम है। ऑडिटर दे रहे हैं ना, ऑडिटर वेरीफाई करेंगे कि एक सेकंड में आपको दे दूं सर, वो खुद उसको वेरीफाई करेंगे, SCCP नहीं ले रहा आपसे, ऑडिटर ने खुद करना है। हाँ नहीं होगी ना, ऑडिटर सर्टिफिकेट सिर्फ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है, वो मैं आपको रेगुलेशन में दिखा देता हूँ, वो उसका फॉर्मेट है। लिस्टेड कंपनीज नहीं होंगी, सब्सिडरीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज नहीं होंगी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी, जिनके एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं वो नहीं होंगे, वो कंपनीज क्वालिफाई नहीं करेंगे। जी जी लिखा हुआ है ये रेगुलेशंस में, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ व्हेन वी गेट टू द स्लाइड सर। देखिए आप जब अप्लाई करते हैं तो विद इन 15 डेज वी गेट बैक टू यू विद आइदर एन ऑब्जर्वेशन लेटर या इफ इट इज क्लियर तो विद द स्ट्राइकिंग ऑफ लेटर। उसके बाद वी सेंड इट फॉर द गैजेट पब्लिकेशन, दोनों गैजेट पब्लिकेशंस में 90 डेज का टाइम है बीच में। गैजेट पब्लिकेशन इंडिविजुअल एक कंपनी की नहीं होगी, मंथ एंड पे हम लोग कंसोलिडेट करते हैं सारे हमारे CROs और फिर उसको भेज देते हैं आगे इस्लामाबाद में कंसोलिडेशन के लिए। इस्लामाबाद टेक्स इट अप विद द प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन, वो फिर उनका नंबर लगता है और जाते हैं आगे। हाँ रफली लग जाते हैं उसके अंदर। नहीं उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, द टाइम फ्रेम रेस्ट विद द कंपनी। वॉलंटरी वाइंडिंग आप कितना जल्दी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कितना, वैसे तो 1 साल का टाइम होता है वॉलंटरी वाइंडिंग आपको कंक्लूड करने में, अनटिल आप कोर्ट से एक्सटेंशन ले लें उस चीज़ की। मैं वॉलंटरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर आप हमारे पास डॉक्यूमेंट जितनी बेहतर बना के लाएंगे और ऑब्जर्वेशंस कम होंगी उतना जल्दी आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा सर। नहीं वो हम तो शेयर करते हैं सर। नहीं नहीं सर जी नहीं ऐसा नहीं है। उसकी प्रैक्टिकली उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि द कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट मेंटेनिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। इवन जो हम लोग लेटर्स भेजते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में अनडिलीवर्ड आ रहे होते हैं बिकॉज दे वाउंड अप देयर बिजनेस। सेकेंडली गैजेट नोटिफिकेशंस बल्क में होते हैं, वो आप अपनी कंपनी को नहीं निकाल सकते उसमें क्योंकि वो हर तरह का गैजेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पब्लिश हो रहा है। तो वेयर एग्जैक्टली योर कंपनी इज प्रेजेंट इन दैट गैजेट वो आपके रजिस्ट्रार को पता होगा जो आगे फॉरवर्ड कर रहे होंगे क्योंकि उसका हमने ट्रैक रखा हुआ होता है। तो जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो वी शेयर इट विद द कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पुराना भी आपका कोई है तो आप बता दें उसमें कर लेंगे। हाँ हाँ
एग्जैक्टली हाँ सर, आप व्हाट्सएप कर दें, मैं उस पर भी शेयर कर देता हूँ, मैं ईमेल पे भी कर देता हूँ, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो वी हैव उसका ट्रैक है पूरा ना, कि एक कंपनी जो वाइंड अप हुई या स्ट्राइक ऑफ हुई तो उसका गैजेट किस स्टेज पे है, और वो तो मिल जाता है। वो नहीं, आप बताएं, वो तो हो जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें उसमें ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा ना कहें, मैं खुद इशू करता हूँ लेके जा चुके। नहीं, उसकी सर्टिफाइड नहीं हो सकती ना, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अ फॉर्म, और जिसको लॉ ने प्रोवाइड किया है, इट इज अ लेटर, उस लेटर की कॉपी आपको दे देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब इशू करने में। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको साइंड कॉपी मिले लेटर की, तो वो आपको साइंड कॉपी विद द सेम नंबर इशू कर देते हैं, उसमें तो कोई मसला, क्योंकि इट्स जस्ट अ लेटर, वी अंडरस्टैंड इट्स अ लेटर। वो में अगर आपको ओरिजिनल साइन के साथ चाहिए, साइन के साथ ले जाते तो लोग लेके जाते हैं कॉपीज। कुछ नहीं, आप अप्लाई कर, हाँ सिंपल एप्लीकेशन, नो फी रिक्वायर्ड, आप मैसेज कर दें, मसला नहीं, हो जाता है। सर रोज आते हैं वो ना, मेरा वो व्हाट्सएप भरा हुआ होता है इन्हीं मैसेजेस से, तो जो मैं स्टेटस लगाता हूँ वो सारे मैसेजेस ना, वो सब लोग फिर व्यू करते हैं उसको। एप्लीकेशन फॉर इजी एग्जिट में आगे आपके 2 गैजेट नोटिफिकेशन हो गया। अच्छा, ऑनलाइन सर ये मॉड्यूल है कंपनी का, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली मेन आपका मॉड्यूल है, जिसमें आपके सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। इसी में आपको इजी एग्जिट का भी प्रोसेस अवेलेबल है, क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पे फॉर्म्स प्रोसेस आपके ओपन हो जाएंगे। और जी, हम्म हम्म, that can also be restored, लेकिन why would somebody restore such a company, question is कि वो usually होता ये है कि जो 90% केसेस में they have some immovable property in name of the company, जो कि उन्होंने dispose of नहीं की, उनका इरादा होता है dispose of करने का, लेकिन कंपनी पहले बंद हो गई, प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे अभी तक मौजूद है। तो लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज रिक्वायर यू कि आप लेकर आए SECP से लेटेस्ट फॉर्म। हाउ डू यू गेट अ लेटेस्ट फॉर्म? बाय गेटिंग द कंपनी restored. So you'll get the company restored first and then move on to get a certified copy of the forms. No, it could be for any purpose. We are not concerned with the purpose. हाँ, once a company is restored, it could do any business. It is as good as a company that had never been struck off. मगर इसमें कुछ केसेस ऐसे हुए कि जिसमें ऑडिटर्स ने सर्टिफिकेट्स दिए थे कि द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट, इट डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, और बाद में इट सरफेस्ड, और कंपनी खुद बाद में ले आई एप्लीकेशन के जी हमारा तो एसेट था। तो उस पे उन ऑडिटर्स को थोड़ी पेनल्टी की थी कमीशन ने, और कंपनी को भी पेनल्टी की थी, मगर वो पेनल्टी अमाउंट वाज वेरी लेस देन जो उनका जो एसेट था जो उसको वो रेस्टोर करा के लेना चाह रहे थे। नहीं, देयर हैज टू बी अ ग्राउंड। नहीं सर, ग्राउंड होगी ना सर, ग्राउंड है ना, सेक्शन 425(9) में ग्राउंड्स हैं। हाँ, कि आइदर इट हैज एन एसेट, इट हैज अ लाइबिलिटी, और इट इज इन ऑपरेशंस, और हाँ हाँ, नहीं एसेट होगा ना, तभी तो आप रेस्टोर करने। रेस्टोरेशन इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, वो आपको इतना मतलब एप्लीकेशन फी नहीं, वो अक्सर नहीं हुआ होता, इसीलिए तो रेस्टोर करवा रहे होते हैं हमारे से फिर लोग। हाँ, आइडियली
ऐसे भी बहुत से लोग अप्रोच करते हैं। हाँ, उनके फादर की कंपनी थी या दादा की कंपनी थी जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, एसेट्स थे, और एज ऑफ टुडे वो कंपनी जब डिसॉल्व हो गई, उन लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया, कंपनी डिसॉल्व हो गई, वो एसेट मगर उस कंपनी के नाम पे चल रहा है, इमूवेबल एसेट। सर वो हम बहुत छोटी कंपनीज की बात कर रहे हैं ना। मगर वो फाइनेंशियल्स वर नेवर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद एससीपी। वो तो फाइनेंशियल्स तो बाद में आई ना रिक्वायरमेंट, 2008 में आई है रिक्वायरमेंट के बाद आप सारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए एटलीस्ट फाइल करें। पहले तो पब्लिक कंपनीज पे था, तो वो तो दे वर नेवर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर फाइनेंशियल्स। तो जब वो स्ट्रक ऑफ हुई थी तो दे वर बोनाफाइडली स्ट्रक ऑफ, क्योंकि दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल any financials, they had not filed any returns. That is why we proceeded ahead to strike off the companies. Years later they realized कि oh there is an asset, अब वो नहीं ट्रांसफर हो सकता। कैसे ट्रांसफर हो? नहीं, ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं है सर, और ये 425 will be applicable on both the type of companies जो कि SECP ने on its own strike off की, as well as to section 426। अब वही वाली आपकी वाली बात कि ऑडिटर सर्टिफिकेट इशू हुआ, प्रैक्टिकली ऐसे केसेस जब आए तो उसमें ये था कि वो ऑडिटर ने भी कहा कि they were in the process of disposing of this assets and they were halfway through with this disposal, और मैंने इस वास्ते सर्टिफिकेट इशू कर दिया, लेकिन फॉर सम रीजन वो नहीं डिस्पोज ऑफ, वो ट्रांजैक्शन नहीं आगे चल सकी, स्टक हो गया। तो अब कुछ वे आउट तो होना चाहिए ना उसका। एब्सोल्युटली। देखें जो रीजनेबल नहीं ऐसा नहीं होगा। ऑडिटर ने कब सर्टिफिकेट दिया, वो सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। ऑडिटर ने वो कंपनी का कैपिटल कितना था, बड़ी कंपनी है, उनके रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स तो जा रहे होंगे ना, उस वक्त में भी शायद जमा कराए होंगे, तो उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी या नहीं हो रही थी। क्या कंपनी वाकई इतनी छोटे साइज की थी कि उनके पास और कुछ नहीं था, सिर्फ एसेट था, दे वर रियली नॉट इनटू एनी ऑपरेशंस, the sole purpose this company was created was to hold this asset। और वो इसलिए था कि बैक इन 1990s वो कुछ CVT या वो जो वैल्यू थी, अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी अगर कोई लैंड एक्वायर करती है उस पर बहुत कम थी, वो कुछ इस तरह की प्रोविजन थी। इसलिए विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज बहुत सी ऐसी बनी हुई हैं जिनके पास वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड की फॉर्म में मौजूद है, और वही कंपनीज हैं जो कि हमारे पास रेस्टोरेशन के लिए आती हैं ज्यादातर। Sorry? Loan will be a liability. हाँ हाँ, वो ऑडिटर देख के बताएंगे। अब आप दूसरी जगह तो ये राइट ऑफ कर लें। हाँ हाँ, इस जगह पे रेगुलेशंस इस चीज़ को एड्रेस नहीं करती। वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल, कि इस स्पेसिफिक पॉइंट को रेगुलेशन नहीं एड्रेस करती। आइडियली इट शुड गो फॉर वाइंडिंग अप थ्रू कोर्ट। हाँ, तो वो नहीं देंगे फिर सर्टिफिकेट, अच्छे ऑडिटर्स होंगे वो नहीं देंगे। सॉरी, ये देखें, easy exit is for small companies which form the bulk of the companies incorporated with us। अच्छा, ये requirements होंगी, it has no assets, liabilities, not in operations, provides clearance। अच्छा, अगर कोई licensing authority है जिससे कंपनी incorporate हुई है तो उस licensing authority का NOC हमें चाहिए होगा with your easy exit applications। ऑनलाइन एप्लीकेशंस का ये आप जब मेन अपना अकाउंट खोलेंगे कंपनी का तो ये डिस्प्ले हो रहे होंगे मुख्तलिफ प्रोसेसेस। इसमें यू वुड गो फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनीज, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है,
रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने कंपनी बंद करनी है, मीटिंग में कितने लोग मौजूद थे, कॉरिस्पॉन्डेंस एड्रेस जो कि आप चाहेंगे कि जिसपे फ्यूचर कॉरिस्पॉन्डेंस एड्रेस की जाए, और हम दोनों पे देते हैं लेटर्स आपके फ्यूचर जो आप इसमें एड्रेस ले रहे हैं फॉर कॉरिस्पॉन्डेंस टू योर ऑडिटर एज वेल एज टू रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द कंपनी। इसमें आपने साथ में अटैचमेंट, 2 अटैचमेंट्स होंगी जो कि हैं, एक आपका डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स है, ये स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा, ये लिख रहा है कि द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट्स व्हाई आप उसको स्ट्राइकिंग ऑफ में लेके जा रहे हैं। एंड दिस इज द ऑडिटर सर्टिफिकेट, ये सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि ऑडिटर ने अपने सर्टिफिकेट में देने हैं कि द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट्स लायबिलिटीज, नॉट इन ऑपरेशंस। अगर उनको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कंप्लाई कर ली हैं, और इसलिए इनको ऑडिटर सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। सर स्टॉक ब्रोकरेज हाउस है जैसे, तो आप फिर स्टॉक एक्सचेंज से क्लियरेंस लेकर आएंगे, हम लोग खुद SECP के इंटरनल SMD से भी क्लियरेंस ले लेते हैं। सपोज आपका NBFC है तो वह NBFC डिपार्टमेंट से उसकी क्लियरेंस होगी। ये लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर वो कंपनी सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज हैं तो आपका लाइसेंस रेवोकेशन ऑर्डर होते हैं वहाँ से, तो वो रेवोकेशन ऑर्डर के ऊपर दैट जस्ट शोज कि यू हैव नथिंग पेंडिंग विद द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये ऑनलाइन है, हाँ बिल्कुल। स्टैम्प पेपर की हम लोग वैल्यू नहीं देखते, आप कुड बी एनीथिंग। 4th पॉइंट आप कह रहे हैं सर? अच्छा, आपके पास है? ओके, आप चाह रहे हैं कि एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाई यू इंटेंड टू लाइक सॉर्ट ऑफ लिमिट योर लायबिलिटी। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, ये पॉइंट है वैसे वैलिड, इट्स समथिंग वैलिड। हाँ वो कह रहे हैं कि जो द कंपनी डज नॉट हैव एनी एसेट्स और लायबिलिटीज इन इट्स बुक्स, मतलब नहीं वो तो हाँ ठीक है ठीक है। पानामा लीक्स में, अच्छा हाँ नहीं अगर ये वैलिड है उनका पॉइंट, ठीक। सॉरी, FIA से सर्टिफिकेट ले, FIA से सर्टिफिकेट नहीं, वो अगर FIA में इंक्वायरी चल रही है तो फिर FIA से सर्टिफिकेट हमें, वो ठीक है वो हम, यह मेरी काइंडली सजेशन है। इस तरह मैंने आपको भी बताया था कि हमारा जो 9 रेगुलेशंस है ना, जिसमें हमने इजी एग्जिट रेगुलेशंस भी शामिल है, उसको हमने मर्ज किया इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कंपेंडियम, ठीक है, वो वेबसाइट पे प्लेस की गई। वो फिर तमाम जो थे ना हमारे ICAP वगैरह प्रोफेशनल बॉडीज़ को भी भेजी गई थी कि जी कि आप इस पर कमेंट्स दें। तो अगर रेगुलेशंस के हवाले से आप चाहे इसके कि आप प्रॉपर उस पर अगर आप कमेंट्स दें हमें, तो वो प्रॉपर कमेंट्स हम इनकॉर्पोरेट करके पॉइंट टू पॉइंट फिर वो डिस्कस होगा हायर लेवल तक, बजाय इसके कि एक पॉइंट हम नोट कर लें, कुछ रह जाए, कुछ इस पे प्रॉपर अगर आपका कोई है, कोई एक बंदा या कोई बंदा भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर ले, ICAP कर ले कि इजी एग्जिट रेगुलेशंस पर जो भी कमेंट्स हैं with regard to order certificates, with regard to any wording, क्योंकि वो चेंज तो हो ही रहा है। हाँ वो इस वक्त है कि अगर आप भेज दें हमें
तो वो चीज़ हम प्रॉपर ऊपर फोरम तक डिस्कस कर लेंगे, और वो अगर वो विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू ICAP की तरफ से आ जाए तो आई थिंक बेस्ट हो जाए। मैं वही कह रहा हूं सर, एनीथिंग But then it will be open ना सर, फिर तो it will be open, फिर तो उसके अंदर बहुत सारे disclaimer and it will be then an unlimited चलिए हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। चैप्टर 9 उसको वेरीफाई कौन करेगा, मतलब वो तो डायरेक्टर्स की तरफ से बात आई ना, और इसीलिए हमने अब प्रपोज किया है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये हम लोगों ने देखा कि छोटी कंपनीज के लिए डिफिकल्ट एंड दैट हैज अ कॉस्ट एज वेल, कि आप ऑडिटर के पास भी फिर जाएं, तो इस तरह तो फिर लेकिन ना फिर अगर इस तरह assumption पे चलेंगे तो फिर मेरे ख्याल है ऑडिट की ऑडिट जरूरत नहीं की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर एनुअल ऑडिट की भी जरूरत नहीं रहेगी जी। मगर सर वो जो कंपेंडियम पे कमेंट्स वाली बात है ना, ये इजी एग्जिट का एक चैप्टर है प्रॉपर उसके अंदर, ठीक है। चैप्टर 9 है, हाँ 9 या 10 है, जो भी नंबर है, एंड वाला चैप्टर है, मिसलेनियस से पहले वाला, वो आप देख लें। उसको देखकर, और अभी वो फाइनलाइज होना है, और ये ऑडिटर सर्टिफिकेट के बारे में जितनी भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट के फॉर्म में करें। तो एक्सटर्नल फीडबैक की भी एक वेटेज ऑफ कोर्स होती है बिफोर फाइनलाइजेशन। ये एक कंपनीज जो रेगुलेशंस हैं जितनी डिफरेंट, उनका एक कंपेंडियम बना है कंपनीज रेगुलेशंस के नाम से, ड्राफ्ट स्टेज पे हमारी वेबसाइट के ऊपर है, ओपन फॉर कमेंट्स, ठीक है। तो उस पर कमेंट्स फॉर्मली अगर आप देंगे, और अगर आप ICAP के थ्रू भी कंसोलिडेटेड देते हैं कि ऑडिटर की उसमें जो भी आप कहते हैं कि उसकी लिमिटेशन है, वो नहीं कर सकता, जो भी सजेशंस आपने दी हमने तो नोट कर ली, बट अगर आप इसको एज एक्सटर्नल मतलब एक फोरम के थ्रू कमेंट्स देंगे तो वो अभी कंसिडर हो सकता है बिफोर देयर फाइनलाइज्ड, जो भी आपके कंसर्न्स। बेसिकली 9 रेगुलेशंस हैं, ना सिर्फ इजी एग्जिट। सर मैं यहाँ पे देखें कमेंट्स के लिए तो जाते हैं, वो तो हमने रिक्वेस्ट की हुई है, रिक्वेस्ट तो की हुई है, रिक्वेस्ट फॉर्म। वो वैसे जाते हैं, ऐसा चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर आ जाते हैं हम अटैचमेंट्स के ऊपर। जो आप अटैच करेंगे, हमारे बेसिकली मॉड्यूल के अंदर अटैचमेंट की ऑप्शन है। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन। वंस आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो अच्छा, ये सारे प्रोसेस इजी एग्जिट का जो स्ट्राइकिंग ऑफ की एप्लीकेशन है, दैट हैज़ बीन सेंट्रलाइज्ड बाय SECP, और वो हमारा लाहौर ऑफिस ही देख रहा है सारी एप्लीकेशंस को थ्रू आउट पाकिस्तान जो आ रही हैं एप्लीकेशंस। तो अगर आप फिजिकली अप्लाई करते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिजिकली अगर आप अप्लाई करते हैं तो यू विल बी अप्लाइंग टू द रेलेवेंट CRO जहाँ पे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। ऑनलाइन में यू नीड नॉट गो टू एनी CRO, आप यहीं से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आ जाएगा। इसके बाद आगे रेस्टोरेशन ऑफ कंपनी। जो रेस्टोरेशन की, इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू द कंपनी। एक सेक्शन 425(6) में कोर्ट की पावर्स हैं कि 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन कोर्ट उसको रेस्टोर कर सकती है कंपनी को। बट इफ यू आर पास दिस 3 year पीरियड तो यू कुड कम टू SECP। द कमीशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द रजिस्ट्रार, एग्जैक्टली वर्डिंग है वो, उस कंपनी का रेस्टोरेशन ऑर्डर पास कर देता है। वो क्लॉज नहीं है सर, वो है कमीशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रार विल पास रेस्टोरेशन ऑफ द कंपनी ऑर्डर, और द रजिस्ट्रार विल एंश्योर थ्रू सीकिंग ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन that the company merits restoration। तो वो उसमें फिर रजिस्ट्रार हैज टू बी रियली वेरी श्योर कि हाँ, मैं जब इसको रेस्टोरेशन के लिए आगे कमीशन में भेजने लगा हूँ तो आई एम श्योर कि दिस हैड एन एसेट और अ लायबिलिटी, और उस बेस पे मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
इंक्वायरी नहीं, वो हेयरिंग होती है बेसिकली, जो आप सेक्शन 425(9) की हेयरिंग होती है, उसमें वो बुलाते हैं आपकी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को और आपके ऑडिटर को। तो वो कमीशन नहीं किया था। हाँ जी 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 जी। वो मतलब वो ऑडिटर थे, मतलब लेट्स नॉट नेम हिम, वाज अ फर्म नॉट ऑफ लाहौर, मगर उनको आई थिंक 500,000 रुपीज फाइन हुआ था। सॉरी, हाँ जी, उनका पॉइंट यही था, उनका डिफेंस यही था इनफैक्ट। सर चाहिए वो तो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इनएक्टिव कंपनीज की। आप अपनी कंपनी का इनएक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन ऐड की गई थी सेक्शन 424 में। इसमें भी ऑप्शन ये है कि अनलिस्टेड कंपनी जो कि एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है या आप आज की डेट में ऑपरेशंस में नहीं है, तो आप इनएक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर। इनएक्टिव स्टेटस मींस कि यू आर नॉट इन ऑपरेशंस, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस, और आपको कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपने नहीं की है फॉर द टाइम दैट आप इनएक्टिव हैं। द प्रिविलेजेस आर के आपने कंपनी आज बनाई फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, बट यू नीड टू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड कि यू हैव बीन अ कंपनी सिंस 10 years, ठीक है, और आप अब आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए इनएक्टिव हो जाएं। बी, आपने कंपनी बनाई टू होल्ड अ पर्टिकुलर एसेट विदाउट अंडरटेकिंग एनी अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि कंपनी की मैंने एग्जांपल दी, तो वो इनएक्टिव हो जाती है कंपनी। आपने लैंड ले लिया, जो भी आपने एसेट ले ली, होल्ड कर लिया इस कंपनी के नाम पे, एंड यू से कि यू आर नॉट इनटू एनी ऑपरेशंस, सिर्फ द सोल रीजन ऑफ फॉर्मिंग दिस कंपनी वाज टू होल्ड दिस एसेट। तो जब कंपनी के लिए जब आप एफबीआर में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो दिस विल ऐड टू योर स्टैंस कि यू आर नॉट इनटू एनी ऑपरेशंस, इसलिए आपके रेवेन्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है। ये बेनिफिट्स हैं उन कंपनीज के लिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसकी जो फाइलिंग हाँ नहीं, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। आपको फॉर्म डी सिर्फ फाइल करना होगा, जो कि ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है जिसके अंदर सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो दिस इज द ओनली फाइलिंग रिक्वायरमेंट जो कि आपने फाइल करना होगा। मगर इसमें एक चीज़ जो कंसिडर करने वाली है वो ये है कि अगर आप खुद से ये स्टेटस ऑब्टेन करते हैं तो यू नीड टू फाइल फॉर्म 38, और वंस आप उसको एग्जिट करना चाह रहे हैं कि आप इनएक्टिव स्टेटस अपना खत्म करना चाह रहे हैं, तो यू विल बी फाइलिंग फॉर्म 39। ये तो उस सूरत में है कि कंपनी खुद से कहे कि मुझे इनएक्टिव स्टेटस दें। ऑल्टरनेटिवली कमीशन भी एक कंपनी को इनएक्टिव स्टेटस असाइन कर सकता है इफ द कंपनी इज नॉट फाइलिंग इट्स रिटर्न्स। तो हम उसको बजाय इजी एग्जिट में जाने के, वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ असाइनिंग दिस इनएक्टिव स्टेटस टू द कंपनी एज वेल। जिन्होंने 2 साल अकाउंट्स नहीं फाइल किए या अपने रिटर्न्स नहीं फाइल किए, तो उन कंपनीज को हम इनएक्टिव स्टेटस दे देते हैं, और सब्सीक्वेंटली वी मे और मे नॉट strike off those companies. Form D will be filed by the company so long as it intends to remain inactive. Okay, transfer of shares का कहीं specific नहीं लिखा हुआ है, मगर हाँ वो जो critical point है वो है no significant accounting transaction. तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं ना, इसीलिए आप देखें फॉर्म 38 में वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी कह रहे हैं, और फॉर्म 38 इज एन एनुअल फॉर्म, तो इट मींस कि यू कुड चेंज योर मेंबर्स, ऑल्दो इस पे कोई स्पेसिफिक ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं नहीं लिखा होगा, मगर लॉजिकली स्पीकिंग, और ये नया एक चीज़ है। तो ये 2 तरह से हमारे पास आ रही हैं। एक वो कंपनीज थी जो कि हमने लाहौर में तकरीबन 5400 कंपनीज को इनएक्टिव किया था, उनमें से तकरीबन 250 कंपनीज ने एक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर लिया है हमारे से, और इन एडिशन टू दिस कुछ कंपनी हैं जिन्होंने खुद से इनएक्टिव स्टेटस ऑब्टेन किया, वो तकरीबन 35 के करीब हैं पिछले जब से। वो नहीं होगा, उसकी जगह पे फॉर्म डी आ जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, तो ये उन कंपनीज के लिए ना सर जो कि ऑन देयर ओन जा रहे हैं, इनएक्टिव हो रहे हैं, और दे नीड टू शो के वी आर इनएक्टिव।
जो कंपनीज जिनको हमने खुद से इनएक्टिव कर दिया वो तो नहीं जाहिर फाइल करें। एग्जैक्टली हाँ, लाइक यू स्लीपिंग। हाँ सर। हाँ वो रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट उनकी है, क्योंकि वो तो मतलब आप सो लॉन्ग एज अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड यू नीड टू फाइल योर रिटर्न्स, बट दिस विल ऐड वैल्यू टू योर स्टैंड्स व्हेन यू से कि यू हैव नॉट बीन इनटू ऑपरेशंस एंड यू क्लेम सो बिकॉज आपने एससीपी से भी ये स्टेटस लिया हुआ है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। और कोई आपके कमेंट सर? नहीं नहीं, उसमें नहीं होता। उसमें ये है कि कंपनीज जिनको एफबीआर प्रोब कर रहा है वो बहुत रेगुलर एफबीआर हमसे डेटा लेगा। वो जिस कंपनी का भी डेटा लेते हैं उसकी फाइल में वो लेटर्स लगते जाते हैं। तो वंस एप्लीकेशन आती है इजी एग्जिट की, तो फिर हम अगर वो उसका सेक्शन देखते हैं हम लोग कि अगर वो सेक्शन ऐसा है कि जो कि क्रिटिकल है ज़्यादा, तो फिर हम कंपनी से कहते हैं कि आप इसकी क्लियरेंस एफबीआर से लेकर आए, और वो क्लियर कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, provided FBR lets us know कि this company has a dispute। और again उसमें फिर बात ये है कि अगर हम उसको बंद कर भी देंगे तो the dispute pertains to a previous point of time when the company was incorporated, तो वो तो हो जाएगा। 90 डेज में गैजेट पब्लिश होके नहीं आता हमारे पास। हाँ हाँ, वो प्रोसेस के लिए उसको भेज देंगे, मगर वो होगा एक्चुअली गैजेट पब्लिकेशन के ऊपर ही, वो हमारी तरफ से नहीं होगा डिले, वो आगे हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। मगर वी अंडरस्टैंड कि प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन के पास जितना बैकलॉग है और जितना डिटेल में वो काम कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। मगर जो आपने गैजेट की बात की थी, तो गैजेट जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेटाबेस में हमें पता है कि हाँ दिस कंपनी हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ, तो वी राइट अ लेटर कि दिस कंपनी having this name, CUIN number, this registered office so and so, was incorporated on this date and was struck off on this date and is not in existence anymore। तो वो एक हमारा स्टैंडर्ड लेटर है। वो तो रिक्वेस्ट पे है, मतलब जो भी कोई आप रिक्वेस्ट करेंगे उस पर हम आपको कर देंगे। वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कंपनी विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, मगर वो आपको लेटर की फॉर्म में मिल जाएगा या आपको गैजेट मिल जाएगा। अगर आपको इफ यू कीन के आपको गैजेट ही चाहिए तो सर्च फॉर द गैजेट एंड गैजेट मिल जाएगा उसमें। हाँ, मगर बाज़ केसेस में देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब कंपनीज कीन थी गैजेट के लिए, एफबीआर उनसे कह रहा था कि आप गैजेट लेकर आए। वो ये बहुत दफ़ा कंसिडर हुआ और फिर इसलिए नहीं टेकअप हुआ कि एससीसीपी तो उनको क्लियर कर देगा, एफबीआर शायद उनको क्लियर नहीं करेगा। तो मतलब वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट जो आप बात कर रहे हैं। ये हमने एफबीआर से भी मीटिंग्स में भी टेकअप की बात, मगर प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक चीज़, दूसरा कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, एफबीआर हैज़ अ डिफरेंट डोमेन, ठीक है, वो लेजिस्लेशन डिफरेंट है। नहीं आप रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन हमें करने में कोई मसला नहीं है। फिर एफबीआर वो फिर वो उसका मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आई कांट रिकमेंड। वो डोमेन डिफरेंट हो जाएगा। मसला ये कि वो उनका लॉ डिफरेंट है, हमारा लॉ डिफरेंट है, तो मतलब हालांकि वो चीज़ तो आइडियली वो चीज़ तो आपको इन राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए ना। तो मतलब ये है जो अगर हम आपको इजी एग्जिट पे भी ये कर देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा काफ़ी। हाँ, इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट एग्जिट।
तो let's मतलब remain it easy exit and God forbid it becomes a difficult exit. नहीं चले इम्पॉसिबल तो नहीं होगा। तो सर फिर कोई और क्वेश्चन सर? हाँ हाँ सर वो उसमें ना अब हमारे एंड से तो कंपनी आपने हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं और हमने आपको लेटर भी इसलिए इशू कर दिया है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं। तो एफबीआर से आपने वो एनटीएन खुद करवाने के लिए हम एफबीआर को फोर्स नहीं कर सकते ना सर? लेजॉन नहीं हो सकता क्योंकि हाउ डू वी एनफोर्स द लेजॉन? कैसे एनफोर्स करवाएंगे? अगर मैं कर भी लें अगर हम तो वो एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी। प्लस एफबीआर इज वेरी स्कैटर्ड, मतलब हमारे ऑफिस जैसे स्कैटर्ड है ऐसे वो लोग स्कैटर्ड हैं। और फिर एक और क्वेश्चन ये है कि वाई एफबीआर ओनली, वाई नॉट सिंध रेवेन्यू बोर्ड एंड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एज वेल, सोशल सिक्योरिटी? फिर तो द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। एग्जैक्टली तो मतलब वो प्रैक्टिकल, दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल जो कि ये बनाई गई है सर जी। Sir, thank you, Hassan. Thank you very much for bearing with us. And you took a very bold decision कि आपने कहा presentation के बीच में क्वेश्चन आने थे, so फिर ये हुआ। But anyway, thank you very much जी। मेरा ख्याल में हमारे कोई क्वेश्चन रहे तो नहीं गया, सब की तसल्ली हो गई। So with this, मेरा ख्याल में क्वेश्चन आंसर सेशन अब जरूरत नहीं है। We have a shield है। We have a small token of appreciation for you guys for sparing time. Can I request Beg Sahab आपको and Wasim Sahab आप to be on a stage for